Good evening, everybody. So I believe this is our second session. We met last time, I guess, in August. So it's kind of maybe 7 months of interaction between students and faculties of Prime Academy, and we feel that it's a high time that we must have one more interaction where we can just do things as per the requirement. So I have come up with a couple of agendas here. They're not very much different from what I had last year, but still I'm sure most of these things will be helping these students. I have got a small presentation for this. Sunil. आगे कर देना. So our agenda for the meeting is back. ये माउस काम नहीं कर रहा क्या? Yeah. So agenda for today's meeting is what's the current scenario, where exactly we have reached. हम लोग अभी कहाँ पहुँच चुके हैं. Then we'll talk about the scope of improvement. I didn't want to use the term cause of failure, तो मैंने साइड में ब्रैकेट में रख दिया उसको, because not everybody is doing up to the mark. There are many students who are doing good. There are few students who are doing good at some front, but we can see this kind of scope of improvement on other fronts. Maybe शायद maths अच्छा कर रहा हो, physics अच्छा नहीं कर रहा हो, whatever. Now after that we'll talk about what next, what should be the agenda, what should be our plan of action, and then we'll talk about exam pattern. I'm keeping the exam pattern as the least priority because it keeps on changing every time and we never know what kind of exam pattern you will be having. So talking about the current scenario, I'll just try to use a graphical analysis for this. See, this is our time zone. We started in month of probably July. Yeah, July 2017, and right now it's July 2016 we started. Now it's Feb 2017. अभी 2017 है. So talking about the difficulty level of the topics. Say मैं physics के बारे में बात करता हूँ, and say this is the difficulty level of the topics. So when we started in July, we started with a very easy topic, say called vectors. बहुत easy topic था, vectors से start किया था. And I could see that students were very much okay with that topic. Vectors था, एक units and dimension था, that was also a very easy topic. So students were pretty comfortable with those topics that time. Those units and dimension, vectors, kinematics, then after that Newton's law of motion, work per energy, level kept on increasing. जैसे हम आगे बढ़ते रहे months में, topics का level भी बढ़ता रहा. Now, last month, say in Jan 2017, we finished a topic called rotational motion. We also call it rigid body motion. So, talking about the difficulty level of this topic, this is probably the most difficult topic in JEE studies. अगर आप JEE studies की बात करते हैं, if you ask me कि physics, chemistry, maths put together, सबसे ज़्यादा tough topic कौन सा होगा? So usually we don't give a second thought and directly say that अरे शायद rotation motion is the toughest in physics, chemistry and maths. मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? Because we have just finished the topic and that gives a very good reference for these students where exactly they are and what kind of difficulties they have to face in future. As far as my understanding is concerned, most of the students were quite confident about this topic. बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे. मतलब ये हालत तो नहीं थी कि बोल पाए कि वी जस्ट कैनॉट अंडरस्टैंड दिस. मे बी यू कैन क्रॉस वेरीफाई विद योर किड्स एंड मे बी आई कैन मेक दिस स्टेटमेंट कंडीशनल. मैं शायद इसको इस तरह से पुट कर सकता हूं. इफ यू थिंक दैट दिस टॉपिक वाज नॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू, देन वी कैन ड्रॉ इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दिस. उससे हम एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि आगे के टॉपिक्स हमें शायद और इजी लगने वाले हैं. आगे के टॉपिक्स शायद और इजी लगने वाले हैं. आई मीन
if you ask me from experience, then I can say this is the toughest one, and after that it gradually decreases. It gradually decreases. So अगर आपका level of confidence से 10 पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो शायद और बढ़ के 15-20 होता है. I'm talking about level confidence because this is difficulty level. There are two reasons. One is definitely level of topics come down a little bit. At the same point in time, maturity level of these students increase significantly. जब लोग 10 से just 11th में आए होते हैं, that point of time they are in a very completely different frame of mind. They are in a very different frame of mind. आदत होती है 10वीं के लेवल के बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस करने की और उसी टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे आते हैं. सडनली यहाँ पर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें स्टार्ट होती हैं. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है और सूडो फोर्स पूछ लिया. ऑल दिस थिंग दे फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट इनिशियली, बट ऐसे ऐसे भी 7-8-9 महीने अगर ये क्रॉस कर लिया है तो डेफिनेटली इट मींस दैट यू हैव रीच्ड अ लेवल वेयर यू विल फाइंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इजी फॉर श्योर. ये है मतलब आप कोई जिम ज्वाइन कीजिए और जिम ज्वाइन करते हैं आपको फर्स्ट डे बोला जाता है कि आप 70 केजी से स्क्वाट मारो. आप शायद इसको 1 या 2 ही मार पाओगे. 70 केजी से स्क्वाट्स करना होगा तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. इन द सेम वेट यू स्टार्ट फाइंडिंग इजी ग्रेजुअली. शायद 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको वही वेट कम लगने लगता है एंड यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द वेट. इट डजंट मीन दैट ग्रेविटी कम हो गई है या फिर वेट खोखले हो गए हैं. नथिंग लाइक दैट. वेट्स आर सेम but probably your strength has increased. Exactly same goes here also, that they had a maturity level which is increased significantly, and in this it helps us a lot. This is one thing. Second is, as far as these exams are concerned, as far as these JEE and other competitive exams are concerned, most of the topics are asked from this which we are yet to take. अभी हमने क्लास 11th का खत्म किए हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें अधिकतर टाइम देखा गया कि 12th के टॉपिक्स में ज्यादा एम्फसाइज करते हैं वो लोग. दे आस्क मोर क्वेश्चंस फ्रॉम 12 टॉपिक्स. व्हाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज यू फील दैट फॉर एनी रीजन थिंग्स हैव नॉट गॉन राइट इन योर फेवर, देन स्टिल यू हैव अ लॉट वेयर यू कैन स्कोर. ओके, टफ टॉपिक्स जस्ट गॉट ओवर. देन सेकंड इज सिलेबस विल गेट ओवर बाय September 2017. सो वी हैव गॉट अ स्ट्रेटजी. एज फॉर दैट वी फिनिश our syllabus of physics, chemistry, maths at September 2017. अभी September 2017 में सिलेबस खत्म होगा. उसके बाद में उनका April 2018 में एग्जाम आता है मेंस का और एडवांस का May 2018 में. So in between we get sufficient time for revision. This time पे we increase the frequency of mock tests. We start taking revision lectures from the higher point of view. Next important topics are yet to start. I just told you this thing that physics की बात की जाए तो physics में electrostatics, current, electricity, magnetism, EMI, these are the important topics. और ये पूरी सीरीज अभी स्टार्ट होने वाली है. And if at all some student was doing good in this and you are not doing good, हो सकता है कि आपका पड़ोस वाला बच्चा काफी अच्छा कर रहा हो और आप अच्छा नहीं कर रहे, then also you can fancy your chances with your overall scoring in JEE because in these topics electrostatics में ना उसको कुछ आता है ना आपको कुछ आता है. अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया टॉपिक को. सेम गोज विद मैथ्स ऑल्सो. क्वाड्रेट ज्योमेट्री काफी स्कोरिंग होती है एंड दे आस्क मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट. वी आर हियर टू स्टार्ट दैट टॉपिक. देन नेक्स्ट इज लॉट्स ऑफ शफलिंग इन लिस्ट ऑफ गुड स्टूडेंट्स. अच्छा, अभी करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आई हैव सीन दैट व्हेन स्टूडेंट जॉइंड अस देन लिस्ट यूज्ड टू बी वेरी डिफरेंट. प्राइम एकेडमी के जितने भी सारे बैचेस है उसमें टॉप के 10-15 स्टूडेंट्स हम देखते थे. वो स्टूडेंट्स अभी काफी तक शफल हो गए. देयर मेनी स्टूडेंट्स हु आर द एंड ऑफ 200 एग्जाम देते हैं तो लास्ट के 20 बच्चे जो हैं वो शायद वो मिड में आ गए हैं, मिड वाले ऊपर भी चले गए हैं, ऊपर वाले तो नीचे भी चले गए. लॉट्स ऑफ सफरिंग देयर एंड दैट सफरिंग कंटिन्यूज फॉर नेक्स्ट 2 years, नॉट 2 years एग्जैक्टली, फॉर यू आई शुड से नेक्स्ट 1.5 years. तो अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट दैट डजंट मीन दिस, दैट डजंट मीन you take it for granted and then you start slipping down. अगर आपका स्कोर अच्छा है तो ऐसा नहीं कि सोचो कि हमेशा ही अच्छा आएगा. इट डजंट हैपन दैट वेज. वो फिर नीचे भी जाना चालू होता है धीरे धीरे अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया. एट द सेम पॉइंट टाइम अगर आपका स्कोर कभी काफी नीचे भी है देन ऑल्सो देयर आर हाई चांसेस दैट इफ यू पुट राइट काइंड ऑफ एफर्ट्स इट मे गो अप. अभी आगे जब मैं 1-1.25 घंटा और सेशन लूंगा तो उसमें आई विल बी पुटिंग मेनी एग्जांपल्स, यू नो, एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट
मैं इस पॉइंट को प्रूव करके बताऊंगा जो मैं बता रहा हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर काफी लास्ट में रहा है, शुरुआत में 10 महीने, 15 महीने, 16 महीने, लेकिन फाइनली एग्जाम तक आते आते परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव. ओके, so as I said, I was little diplomatic while writing this heading as scope of improvement. पहले मैं इसको ऐसे लिखने जाता था कि reason of failure, reason for failure. So when I say failure, it doesn't mean that absolute failure. जब मैं बोलता हूँ failure, उसका मतलब ये नहीं कि वो एक absolute failure है. हो सकता है कि आप 2 सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, जैसे फिजिक्स एंड मैथ, केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर रहे हैं. So kind of it's a failure only. On that platform, it's a failure that आप फिजिक्स मैथ अच्छा कर रहे हो, केमिस्ट्री अच्छा नहीं कर रहे हो. Or maybe you are doing good in classroom, आपके डाउट्स अच्छे पूछते हो, आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आते हैं, but when it comes to exam, you're not able to perform. That is also failure in itself. So I made a list of couple of points here, which I feel that they are main culprits here. First and foremost is smartphone. In fact, I remember last time also we had a meeting, and that time बहुत bold letters में smartphone लिखा था मैंने. So, but unfortunately, I can see like still I've seen so many students with those smartphones. So here, let me be very blunt about it. It's completely the responsibility of a parent to ensure this thing that smartphone should not be given to a student. If so, it's really difficult for us to ensure that we can, get good results out of those students. तो सामने स्मार्टफोन रखा हुआ है और बाजू में ऑप्शन है आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स के 4 क्वेश्चन करने का. स्मार्टफोन में बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशंस हैं, गेम्स हैं. So students prefer doing that, and hence they get distracted. So make sure that this smartphone should be snatched as soon as possible. जितना जल्दी हो सके इनसे खींच लीजिए, अच्छा रहेगा. नेक्स्ट है फेसबुक, व्हाट्सएप, सर्फिंग, ये सब चीजें. अगर अभी स्टूडेंट्स के फेसबुक अकाउंट्स हैं और या फिर वो व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो कहीं ना कहीं दैट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर डिटोरेशन इन द रिजल्ट. द रिजल्ट्स गेट डिटोरेटेड. क्योंकि जैसे मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्यू डेज बैक आई एंटर्ड क्लासरूम, अपनी रिपीटर्स बैच की क्लास में गया. उस क्लास में ऐसे कुछ 3-4 स्टूडेंट बात कर रहे थे वहां पर. आई वाज ए फ्यू मिनट्स लेट फॉर द क्लास. तो स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, चिट चैटिंग. देन आई टोल्ड देम, जो आप ये 4-5 मिनट वेस्ट कर रहे हो ना यहाँ पे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट हियर. मैंने उनको बोला कि जब मैं क्लास 6 बजे की क्लास है, मैं उसमें 6:05 में एंट्री मार रहा हूँ, और जो 5 मिनट में मैं देखता हूँ कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो 5 मिनट वेस्ट हुए हैं. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज what kind of frame of mind you had that you had chosen to chit chat in those 5 minutes. That's important. आपका दिमाग का क्या सोच थी कि आपने उन 5 मिनट में टाइम पास करने की सोची. Because if you look back and look at those students who have made it to top ranks, अभी जैसे last year Mayank था, he got all India rank 108. And if I talk about in top ranks, like the person who got all India rank 1, Sushant Sachdeva, Amay Ranade, Weber Krishan, इनके 1, 22, 44 ये सब रैंक्स रहे. I never found these students doing this. There's a difference. I never found these students doing this. अगर 5 मिनट हम लेट आते हैं क्लास के अंदर, तो उस 5 मिनट को they use those 5 minutes for their advantage. They solve couple of extra problems. तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं या फिर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कराने वाले हैं. On the same lane, I am talking about this also. वो फेसबुक पे अगर अकाउंट है, तो वो फेसबुक पे उसने 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा लगाया, वो तो गया ही गया. उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि वो मतलब हाउ कम ही वाज कंफर्टेबल डूइंग दिस. तब उसको ये चीज पिंच क्यों नहीं की कि भाई मेरा एजेंडा ये है कि आई हैव टू स्टडी फॉर द होल डे. देन जहां भी ब्रेक्स हैं वहां पर मेरे को आई हैव टू यूज दोज ब्रेक्स इन अ बेटर वे. या पढ़ाई कर रहे हैं 2, 3, 4 घंटा कभी भी, तो उसके बाद में ब्रेक लेते हैं. ब्रेक में इंस्टेड ऑफ डूइंग फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी एंड व्हाट इज राइट, सर्फिंग इन जनरल, नेट सर्फिंग, you should go out for a mild walk या फिर some sports से बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस नहीं होने चाहिए कि पता लगा 3-4 घंटे का एकदम अपने फुल फ्लेजेड क्रिकेट मैच खेल लिया तो बहुत थक जाते हैं इसमें. तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का गैप में आप थोड़े टाइम के लिए बाहर जाके यू गेट रिजुनेटेड, आप थोड़े फ्रेश हो आते हो, वापस से पढ़ाई स्टार्ट करते हो. ये सब करते हो ना, तो ये कहना कि बैक ऑफ माइंड में चलता रहता है. फेसबुक पे आपने फोटो अपलोड किया, बस फिर 3 दिन तक देखते रहो कितने लाइक आए हैं उसके अंदर. तो दैट वे यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, राइट. सो बेटर यू अवॉइड दिस. एक्चुअली अगेन मैं स्टूडेंट्स को बोल चुका हूं कहीं ना कहीं, बट एट द सेम पॉइंट टाइम these students are with us for 2.5 hours a day, and rest of the time they are under your surveillance or school surveillance.
तो कहीं ना कहीं आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट अवे विद द ड्यूटी, बट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग इस चीज को मॉनिटर करेंगे तो बेटर रहेगा कि दे शुड नॉट दिस फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ऑल दीस थिंग्स. एनीवे दे डोंट रिक्वायर ऑल दिस थिंग्स. मिसिंग लेक्चर्स, वी हैव बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस. जब से स्टूडेंट्स ने प्राइम एकेडमी ज्वाइन किया तब से शायद मैं उनको 10 या 12 बार ये पॉइंट एम्फसाइज कर चुका हूं. इनफैक्ट माय फर्स्ट लेक्चर वाज ओनली ऑन दिस वन. माय फर्स्ट लेक्चर टॉक्ड ओनली अबाउट दिस थिंग दैट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ अ लेक्चर. एक लेक्चर से आपको अगर पूरा ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करना है तो यू हैव टू स्टिक विद अ वेरी सिंपल पॉलिसी. लेट मी रिपीट, अगर आपको हर एक लेक्चर से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है तो यू हैव टू स्टिक विद अ वेरी सिंपल पॉलिसी. पॉलिसी सेज point number 1, you should not miss any lecture. You should not miss any lecture at any cost. But unfortunately, I can see that is happening. अभी होता है कई बार कि स्कूल का एग्जाम है कल तो आज हम क्लास नहीं आए, या पिकनिक चले गए इसलिए क्लास नहीं आए, या पेरेंट्स के साथ में वी वेंट आउट तो क्लास नहीं आए. यू नो दीज थिंग्स विल डेफिनेटली स्पेल डूम. बहुत मुश्किल होती है उससे, क्योंकि मैंने रोटेशन मोशन स्टार्ट किया. फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात बताई व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दे मिस द लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड इफ दे आर कमिंग फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉर्क, वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लाइक जस्ट अ लैंग्वेज, so you will not understand that. तो आपको समझ में आएगा ही नहीं हो. तो इसमें ठीक है, आई विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट अगेन फर्दर डिटेल्स. मैं नेक्स्ट स्लाइड में इस पॉइंट वापस से लिया मैंने, कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस. तो अभी तो इतना ही बोल रहा हूँ कि लेक्चर्स तो अटेंड होने चाहिए सारे. यू कांट अफोर्ड टू मिस दोस लेक्चर्स. सेकंडली, when you're in the class, you should be very interactive. आपको सारे डाउट्स पूछने होते हैं. And third is after going back home, you have to revise the same lecture same day. So ये missing lecture is one of the major culprits. जहां तक मैंने देखा है कि अच्छे बच्चे थे बहुत सारे, लेकिन लेक्चर मिस हो गए 3-4, रीजन कुछ भी रहा हो, then they are completely out of the competition. See, I mean, we understand. I mean, fortunately we have got other options also here. जैसे फिजिक्स के तो सारे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, तो बच्चे इसको दोबारा भी देख लेते हैं कई बार. बट दैट शुड नॉट बिकम अ प्रोटोकॉल कि भाई कोई बात नहीं, लेक्चर मिस कर देंगे, वीडियो देख लेंगे. दैट वे वो फ्लो टूट जाता है. देन डिमोटिवेशन बिकॉज ऑफ लेस स्कोर. अच्छा हाँ, अभी क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स अपने आप को रॉन्ग पैरामीटर्स पे जज करते हैं, स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स. Of course, it is important to get good score, but it doesn't mean that if you are not able to get a good score, you are good for nothing. ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें 2 पॉइंट्स है बताने के लिए. पहला तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ योर क्लास 10th. आपके 10वीं तक आपकी मेंटालिटी ये थी कि 20 क्वेश्चन आते थे, 20 में से 19 करके आते थे, और एक नहीं होता था, और आपके एकदम 95% मार्क्स आते थे. बट दैट डजंट हैपन नाउ. हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जेई का कट ऑफ लगभग वो 20% के आसपास जाता है. जेई एडवांस का कट ऑफ लगभग 20% के आसपास जाता है, और उसको भी इंडिया में टॉप 2% स्टूडेंट्स अचीव नहीं कर पाते. नॉट इवन 2% ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रॉस द नेशन एबल टू गेट दिस स्कोर. तो उसका मतलब ये निकलता है कि स्कोरिंग वाकई काफी लो होती है इसमें. इट इज एक्चुअली वेरी लेस. And if you are not able to get those 95-96%, it's perfectly fine. I mean, बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है वो बहुत ज्यादा they start getting jittery about it. बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इसको लेकर. अरे मेरा बेटा तो 95% नंबर ला रहा था, 96% नंबर ला रहा था, प्राइम एकेडमी ज्वाइन किया तो सीधा 30% पे आ गया. I mean, see, that is not the right criteria actually. I'll talk about it again. But this is not the right criteria. वो आपको 95% नंबर आते थे उस टाइम पर इस चीज के बारे में कि आप जैसे मैंने पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया है कि आप एक वीडियो गेम में क्रिकेट खेल रहे हो, कंप्यूटर पे क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपका स्कोर उसमें कितना आ रहा है, और अभी जो आपका स्कोर आता है वो एक्चुअल फील्ड में कितना स्कोर आता है. इट्स लाइक दैट. So let's not compare these two things. There are students who could not get good score in 10th. वो लगभग 70% के आसपास आए, फिर भी जेई निकल आए. There are many students who got 95, 96, 97, 98, 99% also in 10th, but they could not make it. So let's not, draw any inference from that. That was a very different platform. उसको इससे compare ना किया जाए. One thing. Second is, at times it happens that students are conceptually pretty. कई बार ऐसा होता है कि students conceptually काफी अच्छे हैं, but still they are not able to perform in the exam. Because exam में perform करने के लिए आपको concepts plus examination skills ये दोनों चीज चाहिए होती है. में से एक भी चीज अगर कम पड़ गई
तो फिर एग्जाम में स्कोर नहीं आता है। तो अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट कंसेप्ट वी आर फाइन, कंसेप्ट वाइज वी आर फाइन, देन ऑल्सो दैट शुड बी अ काइंड ऑफ रीजन टू स्माइल। हाँ चलो ठीक, कंसेप्ट तो क्लियर है, देन वी विल वर्क ऑन एग्जामिनेशन स्किल्स। इट शुड बी लाइक दिस रादर देन कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ स्कोर नहीं आया बस हम सब खराब है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही प्रेशर आता है, स्कूल टीचर्स ही प्रेशर आता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। I'll again get back to this point once again in my next slide. So let's not judge only on the basis of your score, because I have seen many students जो अच्छे खासे टाइम तक, मे बी शायद अभी फेब चल रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक उनका स्कोर ठीक नहीं आ रहा था। सितंबर तक उनका स्कोर ठीक नहीं आ रहा था जब तक क्लास 12 पहुंच चुके थे। बट सितंबर के बाद सडनली देयर score increased, there was exponential increment in their score. तो रीजन का कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और स्टूडेंट ने घर पे जाके उसको रिवाइज किया, उसके होमवर्क किया, और बाय द टाइम वो कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कर सकता था, तब तक नेक्स्ट लेक्चर आ गया। और ऐसे करते करते जब वो पूरा सेशन खत्म हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, उन्होंने रिवीजन भी ठीक ठाक कर लिया, कुछ प्रॉब्लम भी कर लिए, बट जैसे ही कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ टॉपिक चेंज हो गया। वी स्टार्टेड वर्क फॉर एनर्जी। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अटेंड किया, समझ में भी आया, बट दे कुड नॉट गेन कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस गेन करने की बारी आई तब तक टॉपिक चेंज हो गया। फिर वही सेम कहानी नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोहरा दी गई। अब ये चीज सितंबर तक होती रहती है, बिकॉज टॉपिक चेंज होते रहते हैं। बट आफ्टर सितंबर things start taking a very sharp turn. सितंबर के बाद चीजें बहुत ही डिफरेंट हो जाती हैं। सितंबर के बाद में अक्टूबर में ऐसा नहीं होगा कि कोई नया टॉपिक आ गया। अक्टूबर में क्या होगा कि वी विल टेक ओनली दोज टॉपिक विच यू हैव डन अर्लियर, जो आपने पहले किए हुए हैं उन्हीं को दोबारा करते हैं, एंड देन यू गेट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू रिवाइज दोज टॉपिक्स। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मान लो कोई टॉपिक 20 घंटे तक पढ़ चुके हैं और इस लेवल पे पहुंचे, दे हैव रीच्ड दिस लेवल एंड दे हैव पुट ऑलमोस्ट 20 आवर्स, उन्होंने 20 घंटे दिए हैं पढ़ाई को। वो लगभग 6 महीने पहले हो गया। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, प्रोजेक्टाइल। So we taught projectile almost 6 months back. So that time students had put enough efforts and they were pretty comfortable with the topic. But अभी projectile बहुत टाइम से नहीं किया है, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट सोचते हैं अरे यार ये मैं भूल गया, शायद वो भूलते नहीं है। वो क्या होता है कि थोड़ा बहुत रिविजन नहीं है उसका, बिकॉज यू आर मोर you are more I should say into some other topics which are contemporary topics rather. अब जो अभी के टॉपिक चल रहे हैं उसमें ध्यान दे रहे हो, तो थोड़ा सा बैक सीट पे चले गए। बट सितंबर में जो रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो 20 घंटे आप पहले लगा चुके थे, इसमें 2 घंटे और लगेंगे, एंड 2 घंटे में यू विल रीच अ लेवल विच वाज प्रोबब्ली बेटर देन योर प्रीवियस लेवल। सो इट इज एन इल्यूजन, ये एक इल्यूजन है कि हमने 20 घंटे लगाए थे पहले उस टॉपिक का एक लेवल, हम भूल गए उस टॉपिक को, अब कुछ फायदे का नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपने टॉपिक अगर वो टॉपिक आपने सीखा एक लेवल तक और भले आप अभी दूसरे टॉपिक कर रहे हो, देन ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रिवीजन यू कैन पुट सम 2 to 3 more hours और वो वापस से गेन करेगा और इनफैक्ट इट विल फर्दर शूट अप, वो और भी ऊपर चले जाता है पहले के लेवल से। दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी गेटिंग इनफ चांसेस टू enhance your examination skills. अभी क्या होता है कि we are not able to do that much, क्योंकि क्या है कि अगर हम अभी एग्जाम स्किल्स पे ही बात करना स्टार्ट कर दें और उसी पे पूरा वर्क करना स्टार्ट कर दें, तो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट स्टार्ट टेकिंग बैक सीट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, द कंसेप्ट ठीक रहे। तो होता यह कि अभी हमारा पूरा ध्यान कंसेप्ट पे रहता है और एग्जाम स्किल्स शायद सुधर नहीं पाती। एक सितंबर खत्म होते ही फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ऑलमोस्ट हर हफ्ते हर 10 दिन में आपका एक एग्जाम होता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ स्टूडेंट। एक्चुअली किसी स्टूडेंट को तो लगभग रोज ही एग्जाम देना स्टार्ट करवा देते हैं। सो एट दैट पॉइंट टाइम यू कैन रिकॉल बैक वेरी इजीली। अच्छा, मैंने 4 दिन पहले एक एग्जाम दिया था, उसमें मैंने ये गलती की थी, अब इस एग्जाम में गलती नहीं करूंगा। वो गलती क्या हो सकती है, शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम मैं नहीं कर पाया था तो ब्लैक आउट हो गया था। तो इन दिस एग्जाम आई विल बी लिटिल मोर अलर्ट। मेरे अगर लाइन से 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, देन ऑल्सो आई विल होल्ड माई नर्व्स एंड विल कंटिन्यू टिल एंड। हो सकता है कि लास्ट में काफी इजी प्रॉब्लम्स आ जाए।
बट ये चीज अभी नहीं हो पाती है। अभी क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि आपने एग्जाम दिया, अभी आपको समझ में आया कि आपने गलती कहां की है, और अगला एग्जाम सीधा 1 महीने बाद है। सो दे आर नॉट एबल टू रिकॉल वेयर एग्जैक्टली दे वेंट रॉन्ग। सो इसलिए बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, ऐसे चलता है। अभी अभी हमारा एजेंडा है, अब कंसेप्ट से ध्यान दो। फाइन। सो हाउ डू वी जज इट? हम इस चीज को जज कैसे करें कि स्टूडेंट कंसेप्चुअली साउंड है कि नहीं है, या फिर ठीक कर रहा है कि नहीं है? द बेस्ट क्राइटेरिया इज, स्टूडेंट से पूछूंगा तो ये बोल सकता हूं कि आई मीन आई कैन आस्क देम, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इन दीज लेक्चर्स, यस और नो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज लेक्चर्स? इफ यस, then things are very much on track. At the same point in time, if parents want to gauge this thing कि भैया ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, so you can very easily make out from the body language of the student actually. Is he keen to attend classes? Is he keen to attend classes? क्योंकि ये क्लास होती है 2.5 घंटे की होती है। अब just imagine a student is sitting for a class, वो 2.5 घंटे with a boring सा आदमी 2.5 घंटे बोलता रहे उसके बारे में, तो you know unless you are very much interested in the topic, you can't sustain that. तो यहाँ पर हम लोग कोई वो यू नो कोई ऐसी कोई डांस या ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं कि वो 2.5 घंटे तक बैठ के देख पाए। तो कहीं ना कहीं अगर वो आने के लिए हैप्पी है, ही इज नॉट वेरी मच रिलेक्टेंट टू कम फॉर द क्लास, दैट मीन्स मतलब यस अप टू सम एक्सटेंट आई कैन से चीजें शायद ट्रैक पे चल रही है, बट अगेन दैट इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। सो डायरेक्टली डोंट कम जंप ऑन एनी कंक्लूजन बाय लुकिंग एट द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इन दीज एग्जामिनेशंस। I'm yet to talk about few more things about this. मैं वापस बात करूंगा इस बारे में। Then test analysis at home. जैसे एग्जाम हो गया, so that exam is of no use. Let me repeat. An exam is of no use unless you take the same test again after going back home. अगर यहाँ पर एक एग्जाम हुआ है 3 घंटे का या फिर 6 घंटे का, और आप घर पे जाके उस पेपर को दोबारा नहीं देखते हो, तो वो आपने 3 घंटे शायद मतलब मोर लेस वेस्ट ही कर दिए। थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा बट खास नहीं, मतलब मैं इसको वेस्ट बोलता हूं एक्चुअली। क्योंकि यू नो एग्जाम का मेन बेनिफिट आपको एग्जाम के टाइम पर नहीं होता है, उसका मेन बेनिफिट घर जाके जब आप उसको पेपर की एनालिसिस करते हो तो होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पेपर एनालिसिस? एग्जाम हो गया, ठीक है, गो बैक होम, देन टेक द सेम पेपर वंस अगेन एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस योरसेल्फ। एक बार पेपर हो गया, घर गए तो दोबारा से सारे के सारे क्वेश्चंस करो। इनफैक्ट इफ आई लुक एट द टॉपर्स, जो जनरली काफी अच्छी रैंक लेकर आ रहे हैं, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर इन आईआईटी बॉम्बे राइट नाउ, मोस्ट ऑफ देम हैड दिस हैबिट कि वो पेपर जब करते थे तो लगभग ऑलमोस्ट हर तीसरे क्वेश्चन के आगे उनके कमेंट रहती थी, इट वाज वेरी सिली क्वेश्चन, आई जस्ट लेफ्ट इट बिकॉज आई कुड नॉट रीड इट, अ सिली मिस्टेक आई मेड, ऑल सच थिंग्स। सो यू नो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट एंड देन यू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस, एक बार आपने घर पे जाके दोबारा पेपर दिया, फिर आप देखिए आपका स्कोर कितना रहा है। एंड एज फार एज again my experience with these students is concerned, I feel that wo score significantly as in maybe 40 50 60 sometimes 70 80% भी बढ़ जाता है। कल एक स्टूडेंट है, his name is शिवम सिंह, डेक्कन का है, वो मेरे पास आया, उसका स्कोर 79 स्कोर आया, उसका एग्जाम दिया होता है 79 स्कोर आया, but the same paper he started giving again, he got 167. So फिर वो मालूम चलता है कि कहां गए क्वेश्चंस, कहां गए मार्क्स। तो कुछ क्वेश्चंस में तो ऐसा कर दिया कि ABCD था, ABCD ऑप्शन थे, सी करेक्ट था तो उसने बी यहां मार्क कर दिया, या फिर 4+2 को उसने 7 लिख दिया। तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो आई कैन नॉट जनरलाइज दीज थिंग्स फॉर एवरीबडी हैव गॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम्स। जैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट भी है तो भी आई हैड अ टेंडेंसी टू स्टिक विद दैट, सो दैट वाज काइंड ऑफ अ लैक्यूना इन माय एग्जामिनेशन स्किल्स। तो मेरे एग्जाम देने के तरीके का एक ड्रॉबैक था कि अगर क्वेश्चन मैं तो करता था और वो क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट भी है फिर भी मैं उसको करने की कोशिश करता था। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, वो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन कई बार छूट जाते थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसको आप 30 सेकंड्स में खत्म कर सकते हो। स्टूडेंट्स विल स्टार्ट एनालाइजिंग वेयर एग्जैक्टली दे वेंट रॉन्ग। एट द सेम पॉइंट टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वो आपको एसएमएस आता है कई बार कि योर सन गॉट दिस मच स्कोर, थोड़ा कहीं नहीं आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये स्कोर एक्चुअल में ज्यादा बढ़ सकता है। थोड़ा सा पीछे में एग्जामिनेशन स्किल्स का फ्लॉ है विच कैन बी इंप्रूव्ड वेरी इजीली। ओके, नेक्स्ट इज रॉन्गली गन। ओके फाइन। अभी कुछ पेरेंट्स होते हैं, दे हैव टू आई मीन अंडरस्टैंड वन थिंग, लाइक
there's a very thin line between becoming very say over aggressive, एकदम गुस्सा होना स्टार्ट हो जाए, या फिर स्टूडेंट्स की सारी बात मानना स्टार्ट कर दें. कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एकदम ही मान जाते हैं, जो बच्चों ने बोल दिया हाँ चलो मान लिया. दे जस्ट स्टार्ट बिलीविंग देयर किड्स ब्लाइंडली. देयर आर फ्यू पेरेंट्स हु आर एक्सट्रीमली ओवर एग्रेसिव. वो कुछ सुनते ही नहीं, मतलब बस सीधा वो क्या बोलते हैं उसको, आटा दाल लेके चढ़ जाते हैं सर के ऊपर. दे स्टार्ट स्कोल्डिंग देम. So we have to maintain a very good balance in between. So I'm just trying to give you a few points here. See, if your child is saying that I'm not able to understand, I'm not able to cope up because there is a pressure of school, right? और फिर मम्मी को लगेगा कि हाँ रे बेटा परेशान हो रहा है, क्या इसको इतना लोड डालना अभी से, ठीक है, चल कोई बात नहीं, तो काम का स्कूल पे कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दे, राइट? सो दिस इज समथिंग विल बैकफायर इन लॉन्ग रन. I'll come to that point in next slide. ये जो चीज है ये आपको परेशान पक्का कर देगी लॉन्ग रन में. अगर स्टूडेंट ने बोल दिया कि स्कूल का और प्राइम का कोप अप नहीं कर पा रहे हैं साथ में, और आप मान जाते हैं इस बात को, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए आगे रास्ते में, I mean you are trying to create hurdles for his future. At the same point in time, few parents are extremely aggressive. They are over aggressive, I should say. इतने एग्रेसिव है कि स्टूडेंट से बात करते हैं, बताने में भी डरते हैं. दे आर लिटिल हेजिटेंट टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद पेरेंट्स. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि वेयर एग्जैक्टली यू शुड बी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसका स्कोर ठीक नहीं आ रहा है, देन इंस्टेड ऑफ सिंपली स्कोल्डिंग देम, यू बेटर आस्क देम व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम वाज. यू बेटर आस्क व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम वाज. आपने सेम पेपर कर किया. इनफैक्ट यहां पर आपकी भी ड्यूटी है. यू शुड ऑल्सो हैव that should be under your surveillance. अगर पेपर देकर आ गया प्राइम एकेडमी में, घर पे जाके दोबारा पेपर दे रहा है, तो वहां पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए. यहां मेरे सामने पेपर दिया दोबारा से, एटलीस्ट यू कैन सी कि कितना स्कोर बन रहा है उसका वहां पे. तो उसमें एक फर्क आता है. तो आप भी इसको समझा सकते हैं कि ठीक है, तू डर मत, तू परेशान मत हो. यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज एंड ट्राई टू वर्क ऑन एग्जामिनेशन स्किल्स. में भी नेक्स्ट एग्जाम में सुधर जाएगी. तो दे फील लिटिल मोर मोटिवेटेड. सेम पॉइंट में अगर आप नहीं बोल दिया ना कि अच्छा तेरा इतना कम स्कोर है, अगले में तेरा स्कोर कम आया ना, बस फिर तू देख. अब उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर चालू होता है. वो अगले एग्जाम को मॉक टेस्ट की तरह दे नहीं पाते. उनके लिए मॉक टेस्ट नहीं, वो टेस्ट होता है. एंड दे आर नॉट मैच्योर्ड इनफ इन क्लास 11 टू सस्टेन दैट प्रेशर. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द ब्रेक डाउन. फिर वो कुछ अलग अलग टाइप की एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं. या तो एग्जाम मिस करेंगे, या इधर उधर चीटिंग करने की कोशिश करेंगे. तो एनीवेज वो पूरा का पूरा सिस्टम है वही खराब हो गया उसमें. So you have to support them for that matter. की problem क्या है? And if you feel that you can rectify at your end, well and good. If not, then you can always approach us. You can always take an appointment and talk to us कि भाई ये problem आ रही है, तो what to do about this? Because we can see उसमें बहुत minute problems होती हैं कई बार. जैसे एक problem मैंने शायद नीचे मिस किया है, नीचे लिखी है यहाँ पर, wrong study plan, line by line approach. So what I mean by this, I've seen many students. What do? After going back home, they start studying the same topic from the textbook. जैसे मैंने आज विमान नगर पे SHM पढ़ाया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घर जाएंगे और H.C. वर्मा या D.C. पांडे सर की किताब निकाल के उसको एकदम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. तो इट्स काइंड ऑफ रॉन्ग अप्रोच. क्योंकि अब देखो, इसमें क्या पढ़ाई तो कर रहा है वो, ऐसा नहीं कि मस्ती कर रहा है. पढ़ाई में टाइम लगा है, एंड ही सिंसियर आल्सो अबाउट दैट थिंग. ऐसा भी नहीं कि किताब सामने कहीं और ध्यान है. बट उसका अप्रोच गलत है. अप्रोच ही गलत है कि एक्चुअल अप्रोच ही होना चाहिए. जब वो पढ़ा दिया वो टॉपिक, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक टॉपिक पढ़ा दिया, तो व्हेन यू गो बैक होम, देन यू स्टार्ट रिवाइजिंग दैट टॉपिक फ्रॉम योर नोटबुक. पहले तो आप जो क्लास में है, तो यू मस्ट राइट शॉर्ट नोट्स. ऑफ कोर्स यू कांट राइट ईच एंड एवरीथिंग देयर, बट शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं. जैसे कुछ पढ़ाया तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देयर मस्ट बी सम वर्ड, यू कैन राइट दैट वर्ड. तो ऐसे करते करते ही आपके 8-10 पन्ने तो ऐसे भर जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी मेक यू राइट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूला, डेरिवेशन या क्वेश्चंस, प्रूफ, वो सब लिखवाते हैं हम लोग, बेसिक लॉजिक, एवरीथिंग. सो वंस यू गो बैक होम, यू ओपन द सेम नोटबुक. जिस नोटबुक आपने लिखा है, यू ओपन दैट नोटबुक एंड स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम दैट नोटबुक. अगर आप ये ना करके आप कोई टेक्स्ट बुक उठा लेते हैं और उसको बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सो दैट वे यू एंड अप
स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम। अब स्पेंडिंग बोलना था, वेस्टिंग बोलना था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो अगेन थोड़ा डिप्लोमेटिकली मैंने स्पेंडिंग बोल दिया वहां पे। तो कि क्या होता है कि बुक्स में जो चीजें दी होती हैं, डेफिनेटली सब कुछ सही होता है, लेकिन बुक्स आर डिजाइन्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वेरी वाइडर डोमेन। जिसको जेई मेंस का ही पढ़ेगा बच्चा, जेई एडवांस का ही पढ़ेगा, ओलंपियाड वाला ही पढ़ेगा, बोर्ड वाला ही पढ़ेगा, रिवीजन के लिए ही पढ़ेगा, फ्रेश के लिए ही पढ़ेगा, ऑल सच थिंग्स। बट आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है उस टाइम पे। तो एसएचएम पढ़ रहे हो और आप स्टार्टिंग में यही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो कि ये एसएचएम फर्स्ट टाइम इसके फॉर्मुलेस किसने डराइव किए थे, ऑल जस्ट थिंग्स, तो ये कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इंस्टेड यू गो थ्रू योर नोटबुक एंड देन इफ यू रियलाइज दैट वी नीड सम रेफरेंस, देन यू ओपन योर टेक्स्ट बुक। अगर आप अपने नोटबुक से पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते कहीं चौथी, पांचवी, छठी लाइन में अटक जाते हैं, आपको लगता है यार ये पॉइंट समझ में नहीं आया ढंग से, देन यू ओपन योर टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। दैट इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ स्टडीज। और अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक नंबर 1 पढ़ना चालू कर दिया तो होगा ये कि आपका 1, 2, 3 घंटे निकल जाएंगे और आपको फील भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपका आई डोंट लाइक व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्रेंशन यू हैव, क्योंकि सारे बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होते पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होती है कई बार। तो जब तक वो टाइम लगा पाएंगे तब तक उनको बस बेसिक चीजें मालूम चलेंगी वहां पे, और कोई होमवर्क नहीं, कोई रिवीजन नहीं, एंड देन फाइनली परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। सो आई हैव टोल्ड दीस थिंग्स टू स्टूडेंट्स, बट एट द सेम पॉइंट टाइम आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ डुअल कनेक्शन। आपको भी बताते हुए भी और बच्चों को बताते हुए भी कि पढ़ाई करने का बेटर तरीका होता है कि आप अपनी नोटबुक से पढ़ाई कीजिए। ओके, एनीवेज, तो ये बात कहां से आया था? हाँ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग दैट इफ पेरेंट्स आर फाइंडिंग दैट स्टूडेंट्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, and if students, your kids are comfortable with you, then only they will be able to tell कि कहां पर problems आ रही हैं, then only you will be able to suggest them ये कर लो। Okay, next is spoiled friend circle. Now this is also something which makes a huge difference. As far as I am concerned, I still remember like my friends were chosen by my father. I mean, I did not have right to choose my friends. तो सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया देखते थे पापा की, अच्छा इसमें क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं, तो वो कुछ हैं जो काफी अच्छा खेलते थे और बहुत अच्छे खासे लेवल पे खेलते थे, तो उनके साथ फ्रेंड सर्कल तो मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब बिल्कुल चांस ही नहीं है कि मैं उनके साथ बाहर जा पाऊँ। तो किसके साथ में स्कूल जाना है मेरा, किसके साथ मेरे को खेलना है, किसके साथ बात करनी है, तो दे ऑलवेज हैड एन आई ओवर दिस थिंग कि कौन से टाइप के स्टूडेंट है। दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि बाय एनी चांस अगर कोई फ्रेंड ऐसा मिल गया जो काफी डिस्ट्रैक्टेड है, वो दिन भर फालतू इधर उधर की बातें करता रहता है, तो हाईली लाइकली दैट दोज नेगेटिविटीज विल गेट इंड्यूस्ड, वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपके दिमाग में भी घुसना स्टार्ट हो जाएंगे एंड रिजल्ट्स विल सफर देयर। सो अगेन इट्स अ पेरेंट्स रिस्पांसिबिलिटी टू इंश्योर दिस थिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स डू दीस गाइस हैव। अच्छा, मैं स्टडी प्लान की बात कर रहा था, तो इसमें पहला पॉइंट आपको बता चुका हूं मैं कि लाइन बाय लाइन अप्रोच है, ये काम का नहीं है, इट डजंट हेल्प मच। दूसरा है कंटेम्परेरी टॉपिक्स, सेकंड इज कंटेम्परेरी टॉपिक्स, सॉरी। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर एनी रीजन दे वर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट प्रीवियस टॉपिक्स। जैसे अभी मैंने पढ़ाया सिंपल हार्मोनिक मोशन आज, और आज अचानक से वो जाग गए, मतलब हमें पढ़ाई करनी है, बहुत कुछ करना है, व्हाटएवर। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो मैंने अगस्त में पढ़ाया था, वो उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा था उस टाइम पर, मान लो। तो वो क्या करते हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मैंने आज पढ़ा है उसको साइड में रख देंगे और प्रोजेक्टाइल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच बैकफायर्स, इससे भी काम नहीं चलेगा। तो योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी कंटेम्परेरी टॉपिक्स। जो टॉपिक अभी चल रहे हैं वो हमें पहले करने हैं, उसके बाद अगर टाइम मिलता है देन गो टू प्रीवियस टॉपिक्स। इनको ऐसे बैक बर्नर पे रख के पुरानी टॉपिक्स करने में थिंग्स वोंट वर्क फॉर श्योर, क्योंकि आप एसएचएम चल रहा है, आप अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, तो एसएचएम अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। जब मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपको से ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो आपको एसएचएम नहीं आता होगा, तो एसएचएम पढ़ रहे होंगे, तो फाइनली देयर बी ऑलवेज बी लैग देयर एक्चुअली। सो मेक श्योर दैट अगर आपके अभी वाले टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं, देन ओनली यू कैन डू अदर टॉपिक्स इन स्पेयर टाइम।
Okay. Now, there are few suggestions for as like what next. Here again, I cannot generalize each and every point for everybody. Rather, for the same person also, I cannot generalize each and every point for different subjects. हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए मैथ्स के लिए पॉइंट वैलिड है और फिजिक्स के लिए पॉइंट वैलिड नहीं है. तो मैंने बस ऊपर एक ब्रैकेट में लिख दिया है व्हाट नेक्स्ट इफ नॉट डूइंग गुड. आप भले ही प्राइम में टॉप कर रहे हो और आपका फिजिक्स एंड मैथ्स अच्छा चल रहा है, बट केमिस्ट्री ठीक नहीं चल रहा है, तो केमिस्ट्री कम्स अंडर दिस कैटेगरी. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका स्कोर बहुत खराब आता है. फर्स्ट इज see wider picture. Okay, I'll emphasize it now. It has got something to do with my previous slide. जो मैंने पहले बात की थी उससे कनेक्टेड है ये. स्टूडेंट्स कई बार बहुत एकदम भोला भाला चेहरा लेके पेरेंट्स सामने आते हैं, बोलते हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा है, स्कूल में अभी ये चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, नंबर नहीं आ पा रहे हैं, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को स्कूल जाके घर आना पड़ता है, टाइम नहीं मिल पाता है, फिर टाइम जाना पड़ता है, ऑल सच थिंग्स. एग्रीड, फाइन, मान लिया, चलो है ऐसा. बट what are the options? What are the options? Is there any option that fine, I mean you don't give any competitive exam, you just stick with class 12, 11th, whatever, and you will get something good? ऐसा तो नहीं होगा, because as per rules आपको 12th के बाद कोई कॉलेज ज्वाइन करना है तो एक एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्म करना ही पड़ेगा. और अब तो खैर आपके टाइम से एक ही एग्जाम आएगा. दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग नाउ. जो मिनिस्ट्री में जो बात चल रही है और जो इन्होंने प्रपोज किया है वो ये किया है कि देयर विल बी ओनली वन एग्जाम. सो ऑल सेड एंड डन, यू हैव टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम व्हिच वी कॉल JEE मेंस एंड JEE एडवांस. दैट्स इट. बट अनफॉर्चुनेटली सिस्टम थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है. सिस्टम ऐसा है कि स्कूल जाना पड़ता है स्टूडेंट को, और स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, इसके बाद घर आता है, और देयर इज नो प्रोविजन कि वो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर पाए. बट रिक्वायरमेंट ये है कि उसको एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्म करना है. लेट्स टॉक इन वेरी सिंपल वर्ड्स. रिक्वायरमेंट है, भले आप स्कूल जाओ ना जाओ कुछ भी करो, रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको 11वीं के बाद 12वीं जाना है, और 12वीं के बाद आपको इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जाना है, और कॉलेज में जाना है, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा उस एंट्रेंस एग्जाम में. परफॉर्मेंस इन दैट एंट्रेंस एग्जाम कैन नॉट डिपेंड ऑन लास्ट 2, 3 or 4, 5 days or weeks. It can be improved only by at least 1 or 2 years of rigorous and strategic training, which unfortunately we are not able to get in schools. I mean, sorry to say that on records, but yes, that's the case. स्कूल में अगर बच्चे आते हैं तो वहां पर जो स्कूल टीचर्स होते हैं, दे हैव गॉट सो मेनी थिंग्स. उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ सोशल साइंस या इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, व्हाटएवर, देन ओवरऑल डेवलपमेंट, सो मेनी थिंग्स दे हैव. सो अल्टीमेटली देयर एम इज समथिंग डिफरेंट. देयर एम इज स्टिल बोर्ड लेवल, बट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट इज JEE लेवल. तो ये जो गैप होता है इसको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ही और पेरेंट्स को ही मशक्कत करनी पड़ती है. सम दे हैव टू ब्रेक देयर हेड हियर एंड देयर, और कहीं ना कहीं मैनेज करना ही पड़ता है. तो जस्ट बाय सेइंग दिस थिंग कि हाँ मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, I don't think it will work actually, because there is no other option. You have to look at this thing कि आपको JEE में से परफॉर्म करना ही है. That's it. Then अच्छा, second is many students are in habit of extrapolating their results what they have right now. They try to extrapolate कि भाई अभी जो चल रहा है वही बाद में चलता रहेगा. मान लो अभी किसी की रैंक बहुत पीछे आ गई किसी एंट्रेंस एग्जाम में या किसी प्राइम के मॉक टेस्ट में, तो मुझे लगता है कि वो अगले 1 महीने 2 महीने साल बाद 1.5 साल बाद यही चीज आती है. ऐसा नहीं होता है. अब यू आस्क अस, वी कैन सी दिस थिंग दैट कितना ज्यादा रोलर कोस्टर होता है. पता है, कोई स्टूडेंट आता है एकदम बिल्कुल धमाके से एंट्री मारता है, ये तो बहुत स्टड स्टूडेंट है, पेरेंट भी बहुत हैप्पी होते हैं, फाइनली फर्स्ट एग्जाम में अच्छा भी करता है, सेकंड में बहुत पीछे चले जाता है. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनके पेरेंट्स 4 बार पूछते हैं हमसे कि यार ये ज्वाइन कराना ठीक है क्या, इसको ये कोप अप कर पाएगा क्या, ये ऐसा है वैसा है, ऑल दिस थिंग, बट दे फाइनली मैनेज टू गेट इनटू IIT. So in between also, we keep on seeing different pictures. बीच में भी कुछ होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है. So you cannot judge on the basis of your contemporary performance. जो आपका भी चल रहा है, सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि यही चीज आगे सीधा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी. अगर आप सीनियर स्टूडेंट्स को जानते हो, many such students, I cannot use a name, but बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट भी हम चेक नहीं कर पाते हैं. अभी लास्ट ईयर भी हुआ था. अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका बिलीव नहीं, मतलब वी वर नॉट कॉन्फिडेंट कि इनका
रिजल्ट निकलेगा, जेई का जिन एग्जाम हुआ था, जेई का रिजल्ट आया था उस दिन वैसे ही बहुत मुश्किल हो रही होती है, वो दुनिया भर के स्टूडेंट्स होते हैं, सबका रिजल्ट चेक करना, ऑल सच थिंग्स, सो डेफिनेटली यू कांट गिव सेम प्रायोरिटी टू एवरीबडी। तो जिस दिन रिजल्ट निकलता है उस दिन हम पहले चेक करते हैं उन स्टूडेंट्स का जिनका हमें लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी रिजल्ट निकालने होते हैं। तो उसमें कम से कम 15 बच्चे ऐसे निकल गए जो हमने रिजल्ट देखे भी नहीं, और फिर देखा उनका परफॉर्मेंस, देखा 2 साल का मतलब एकदम खराब टाइप का रहा था, क्योंकि लास्ट के 2-3 महीने में एकदम बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया उन्होंने। सो नो, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। एनीवेज आपका दूसरा ऑप्शन नहीं है, एनीवेज आपका दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप एक बार 11th में आ चुके हो, आपको 11th की पढ़ाई, जेई की पढ़ाई करनी है, 12th में भी सेम चीज करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। सो यू हैव टू मैनेज, दैट्स द इंपॉर्टेंट लाइन, यू हैव टू मैनेज, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ लिविंग दिस फ्रंट कि भाई हम छोड़ देते हैं इसको, और एल्स यू विल बी ट्रैप्ड वेरी बैडली लेटर ऑन। अगर आप अभी छोड़ दोगे इस चीज को फॉर एनी रीजन, और फिर आप जेई का एग्जाम देने जाओगे, फिर आप 1 महीना पहले आओगे, बोलोगे क्रैश कोर्स अटेंड करते हैं, इन क्रैश कोर्स में यू नो मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स गेट क्रैश्ड ओनली। 2 साल की पढ़ाई 1 महीने में करानी पड़ती है, वो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। 2 साल की पढ़ाई 1 महीने में प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। सो इट हैज टू बी डन इन द राइट टाइम, इन द राइट वे, व्हिच इज दिस। ओके, हाँ या वन मोर थिंग, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, आई विल टॉक अबाउट दैट। 98% people don't get, yeah, this is something linked to my first point again. Again a very very important point. Now see, you know, we try to get references and we try to make, or rather generate our feelings as per what we see on daily basis. जैसे अभी आप चलो ठीक है, आप कहीं ट्रैफिक सिग्नल पे, यू नो ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, रेड लाइट है, तो इंडिया में कुछ जगह आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां पर आपको दिखेगा कि वो रेड लाइट का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, ठीक है, रेड लाइट मतलब ग्रीन है तो भागो, येलो है तो और तेज भागो, और रेड है तो इधर उधर देख के भाग जाओ, यू नो लाइक, तो ऐसा हम लोग देखते हैं इधर उधर होता हुआ, सो वी डोंट यू नो फील वेरी मच अनकंफर्टेबल डूइंग दिस। ये ठीक है, रेड लाइट हो गई है, लोग चले आ रहे हैं और हम रुके तो पीछे वाला हॉर्न मारता रहेगा, तो हम भी निकाल लेते हैं। गो टू यूएस, गो टू दुबई, तब गाड़ी छोड़ो, एक पैर आगे रखने का मन नहीं करेगा, बिकॉज यू कैन सी द काइंड ऑफ डिसिप्लिन विच दे हैव। वहां पर एक भी बंदा सिग्नल सोच भी नहीं सकता कि तोड़ दे वहां पर, सो दैट बिकम्स अ रेफरेंस। तो आपका रेफरेंस हो जाता है, दिस इज समथिंग विच इज अ रूटीन थिंग एंड आई शुड फॉलो दैट। एग्जैक्टली सेम गोज विद दी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आसपास लोगों को देखते हैं, तो मैंने इसलिए 99% टर्म यूज किया पर। So they, you know, they look at their friends, they see what kind of lifestyle they have. और 99% टाइम लोग थोड़े से, you know, अच्छे फ्रेम में रहते हैं, you know, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, खुश हैं, बस क्लास गए और छोटी मोटी पढ़ाई कर ली, स्कूल में नंबर आ गए, बहुत है। So students and parents try to develop a wrong reference. उनको लगता है कि ये रियलिटी है, बाकी सब लोग इतने रिलैक्स मोड में रहते हैं, तो हम भी रिलैक्स मोड में रह लेंगे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अब जेई की बात करें तो 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं जेई का, राइट? आई मीन देयर इज नो थॉट, नो ओपिनियन, आई एम टॉकिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हियर। 15 लाख स्टूडेंट्स गिव जेई, with 15,000 students make it to 80s. Percentages. So to put it in negative words, to put it in say some negative terms, I can say 99% students are not able to make it to IIT, right? So forget about IIT. एक काम करते हैं, IIT के बारे में नहीं बात करते, फिर और बात करते हैं। अभी कोई कंपनी है, कंपनी का जो होगा, सी होगा, बजाज है या फिर किर्लोस्कर है या कोई भी कंपनी है, या फिर क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर ले तो विराट कोहली प्लस टीम, तो ये बहुत जो टॉप पोस्ट पे जो लोग हैं ना बहुत कम है, 1%, राइट? जो एकदम टॉप लेवल पे लोग काफी कम है, दे आर हार्डली 1%, रेस्ट ऑफ द जनता इज ऑन 99%। तो आपका एम तो ये है कि हम उस 1% में जाएंगे, राइट? तो अगर आप वो बाकी 99% लोगों को देखते हुए अपने रेफरेंसेस बना लेते हैं एंड वही काम करते हो जो बाकी 99% है, तो इट मींस दैट यू विल गेट व्हाट दोस 99% पीपल आर गेटिंग। इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अगर आप वही काम कर रहे हो जो 99% लोग करते हैं, तो आपको वही मिलेगा जो 99% लोगों को मिलता है, एज सिंपल एज दैट। बट कॉन्ट्रडिक्शन इज यू हैव गॉट समथिंग डिफरेंट इन द माइंड। आपको लगता है हमको मेरे को बॉम्बे जाना है, मेरे को मद्रास जाना है, या मेरे को बड़ी कंपनी में
हाई लेवल पे डेस्टिनेशन लेनी है, वॉट एवर इट इज. सो दीज थिंग्स अकाउंट फॉर हार्डली 1%. आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एक्चुअली. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि if you feel that most of your friends, most of your colleagues have got a lifestyle where they go to school, then holidays they go for picnic to Switzerland or whatever, और जब छुट्टियों में बच्चे इधर उधर घूमते हैं, घर से आके 2-3 घंटे खेलने जाते हैं, तो ये सब आप देखोगे तो फिर उसी हिसाब से बी प्रिपेयर्ड कि ठीक है फाइन, उसी हिसाब से हम एक कॉलेज भी ज्वाइन कर लेंगे. फिर उस कॉलेज के आगे क्या होता है दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट लेट्स नॉट मेक दो डिफरेंसेस फ्रॉम दोज 19% पीपल, बिकॉज यू आर एमिंग एट 1% हियर, और उसके लिए मेहनत भी थोड़ी डिफरेंट होती है. तो ऐसा होगा कि आप स्कूल से घर आएंगे और लिटरली आपको देखिएगा टाइम नहीं है, फिर भी प्राइम जाना है, फिर प्राइम का होमवर्क करना है, स्कूल का होमवर्क रह गया, कल टेस्ट है, बट उसके लिए आपको बाकी चीजें कट शॉर्ट करनी पड़ेगी. तो कट शॉर्ट में ये हो सकता है कि आप फोन पे बात करते हैं, दोस्तों से घूमने आते हैं, इधर उधर टाइम पास करते हैं, कट इट शॉर्ट. पेरेंट्स कैन हेल्प देयर किड्स बाय हेल्पिंग देम. फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पढ़ने बैठता है, तो यू कैन टेक अ रिस्पांसिबिलिटी दैट व्हेन ही इज स्टडीइंग, then everything like pen, paper, eraser, glass of water, everything should be there on table. क्यों? Because वो पढ़ने बैठे 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ाएगी, प्यास लगी, पानी पीने के लिए किचन में चले गए, 5 मिनट के लिए गए और 50 मिनट के बाद वापस आए. So here again parents can play important role. So you have to be very alert about this thing. सिर्फ ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने प्राइम की फीस कर दी और बच्चे आना चालू हो गए. It won't help because as I said, most of the time they are with you. Most of the time they are with you. And I'm sure things can change if you go an extra yard. तो और अगर आपको लगता है कि वाकई इसको बहुत परेशानी हो रही है, तो then you just take an appointment with us and we'll try to sort out. जैसे अभी कुछ दिन पहले एक पेरेंट ने बोला था कि पढ़ती तो है, स्टूडेंट काफी ध्यान देती है, स्कोर नहीं आता. देन आई कुड फिगर आउट कि पढ़ाई की स्टाइल ही करते उसकी, वो सब एक पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करती थी टेक्स्ट बुक से. उसके बाद में देयर इज अ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन हर रिजल्ट. तो ये चीज क्लियर रखिए कि आपको यू हैव टू स्टिक विद दिस. आई रिपीट अगेन एंड अगेन, यू हैव टू स्टिक विद दिस. यू हैव टू अटेंड क्लासेस एंड यू हैव टू फॉलो दोस क्लासेस एज मच एज यू कैन, एज सिंपल एज दैट. और उसके बाकी चीजें हैं उनको आप इसके हिसाब से अलाइन कीजिए, रादर देन बाकी मेन मान लिए और इसको अलाइन करके छोड़ दिया उसके ऊपर. डोंट डू दैट. देन ट्राई टू रियलाइज योर स्ट्रेंथ्स हियर. अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर खराब आ रहा है, यू आर फीलिंग डिमोटिवेटेड, व्हाटएवर, देन देयर आर मेनी पॉइंट्स व्हिच कैन हेल्प यू टू gain some confidence. I'll talk about one very important point here. JEE means analysis in class 11. अभी इस बार का JEE का जो एग्जाम है वो 2 अप्रैल 2017 को. Every year, what do? I take the same paper. So we 2 अप्रैल को एग्जाम होगा. Somewhere around 7th or maybe 6th of April, I will take this JEE mains paper with class 11 students, मतलब इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ में जो भी 2018 में JEE देने वाले हैं. तो वापस रिपीट कर रहा हूं, 2017 के बच्चे जो हैं, जो बच्चे 12th में हैं, वो जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, वो पेपर मैं इन बच्चों के साथ जो अभी 11th में है मैं डिस्कस करता हूं. तो 7 अप्रैल के आसपास क्लास में एंट्री मारूंगा, मेरे हाथ में वो एक जेरोक्स होगा, वो जेरोक्स JEE मेंस का पेपर होगा, सीनियर बच्चों का. एंड देन आई स्टार्ट सॉल्विंग दैट पेपर विद दीस स्टूडेंट्स. एवरी ईयर आई डू इट एक्चुअली, आई विल डू इट अगेन. एंड देन आई सॉल्व क्वेश्चन 1. आई सॉल्व क्वेश्चन 1 एंड देन लास्ट स्टूडेंट्स. क्या लगता है ये क्वेश्चन का लेवल कैसा था? आई कैटेगराइज दिस, I categorize all the questions of the paper in 3 categories. एक को मैं ऐसे L बोल देता हूँ, लॉलीपॉप कैटेगरी, लाइक वेरी इजी प्रॉब्लम. एक को मैं ऐसे एवरेज प्रॉब्लम बोल देता हूँ, और एक को मैं बोलता हूँ कि डोंट टच, मतलब उसको टच ही नहीं करना, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन कराया, उनसे पूछा व्हाट डू फील, क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है? बच्चे बोलते हैं सर ये तो बहुत इजी है, इट्स काइंड ऑफ लॉलीपॉप, आप उसको L कैटेगरी में डाल दीजिए. ओके फाइन, L लगा दिया उसका. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पढ़ के पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या बोलता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है. फाइन, लेट्स कैटेगराइज इट अंडर डोंट टच कैटेगरी. तो ऐसे करते करते ना पूरा का पूरा 90 क्वेश्चंस का जो पूरा पेपर है वो हम क्लास में एनालाइज करते हैं. अब कब एनालाइज कर रहे थे? 11th में. तो इसका मतलब बट ऑब्वियस है कि आई विल नॉट बी एबल टू टेक ऑल द क्वेश्चंस. ये आधे टॉपिक तुमको हुए भी नहीं होते. इनफैक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उनके
ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक नहीं होते, बिकॉज जेई का जो एग्जाम जो आने वाला है वो अभी जो बचा हुआ है उसमें से आने वाला है ज्यादा. मेजर पोर्शन ऑफ द जेई विल बी कमिंग फ्रॉम व्हाट वी आर येट टू टीच इन द क्लास. Still these students say, sir, in 90 questions में से, 20 questions we are finding lollipop category. You can ask any of your senior. ये चीज मतलब हुई है, क्लास में हुई है, हर बैच में हुई है. आप किसी सीनियर बच्चे से पूछिए या फिर कोई पेरेंट ऐसे होंगे जिनका बड़ा बेटा या बेटी शायद 12th में होगा, they will agree to this. Around 7th April or 8th April last year 2016 हमने सेम चीज की थी. और ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स हियर. लास्ट ईयर भी जेई मेंस हुआ था, लास्ट ईयर भी 90 क्वेश्चन आए थे, 360 मार्क का पेपर था. इट वाज 360 मार्क पेपर, 90 into 4, एंड कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी वाज 105. तो जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं, नहीं सीनियर टू सीनियर सॉरी, जो 12th जो अभी आईआईटी में जा चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनका पेपर मैंने 12th के बच्चों का डिस्कस किया था जब वो 11th में थे, और लास्ट ईयर कट ऑफ 105 था. और 11th के बच्चों ने एग्री किया था, सर 20 क्वेश्चन तो हम उस टाइम भी कर सकते थे, 80 मार्क्स उनको उसी टाइम पर आ रहे थे. और फिर कुछ बचे क्वेश्चंस में करते 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 पीपल एग्रीड दैट 120 मार्क्स शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. नाउ लिसन, क्लास 11th के बच्चे इस बात को लेकर एग्री करते हैं कि 120 वाज नॉट अ प्रॉब्लम, 105 वाज द कट ऑफ. एंड वी डू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट वॉट एवर आवर स्ट्राइक रेट इज नॉट, इट्स नॉट 100%. वो लास्ट ईयर भी रह गए थे, कुछ सारे बच्चों ने जेई मेंस क्लियर नहीं किया था. देयर वर एटलीस्ट 40-50 स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्लियर जेई मेंस. 250 में से 40 बच्चे थे लगभग जो जेई मेंस लगभग क्लियर नहीं कर पाए थे. तो अब व्हाट वेंट रॉन्ग, आई मीन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड हियर. ये ऐसा क्या हुआ कि वही स्टूडेंट्स जब 11th में थे तो मान रहे थे कि हो जाएगा, और एक साल की पढ़ाई की तो और नीचे चले गए. ऐसा तो नहीं कि हमने गलत पढ़ा दिया होगा उनको, फॉर श्योर यू कैन ट्रस्ट एटलीस्ट फॉर दैट मैटर. So I'll tell you what exactly went wrong. They were low of confidence. वो अपने आप को गलत पैरामीटर्स पे जज करते रहते थे कि हमारा स्कोर कम आ गया है और हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, या स्कूल में प्रॉब्लम चल रही है तो उन्होंने छोड़ दिया उस टाइम पर पढ़ना. They were completely out of the competition then. So don't do that. Anyways, मैं यहाँ पर मेन पॉइंट मेरा ये था कि I'll do the same thing now. I'll do the same thing in first week of April, and that should boost your confidence. वो स्टूडेंट्स को एकदम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देना चाहिए उस चीज को कि अरे यार मेरा अभी जेई मेंस से कट ऑफ क्लियर हो रहा है, जब मेरा 1 साल पढ़ना रह गया है तो ऑब्वियसली 1 साल में तो यार वो बढ़ेगा ही. बट ये चीज तभी पॉसिबल है जब वो 1 साल को आप उस 1 साल की तरह फॉलो करें रादर देन लिविंग इन बिटवीन. सो दिस एक्चुअली इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मेनी स्टूडेंट्स. उसी टाइम पर मैं एक मोटिवेशन सेशन डाल देता हूं 1-1.5 घंटे का, तो वी सी दैट उस टाइम पर अचानक से परफॉर्मेंस बच्चों का बढ़ जाता है उस टाइम पे. देन टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, आई मीन विदाउट बीइंग मॉडेस्ट आई विल से दिस थिंग दैट इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अ स्टूडेंट. दे आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ फैकल्टीज ऑफ दिस लीग. अभी क्या होता है कई बार जैसे कार है मेरे पास, अब मेरी कार में मैं रोज जा रहा हूं तो मुझे कुछ खास अट्रैक्शन नहीं हो सकता, कार बस है बस. लेकिन जिस दिन मैं सर्विसिंग के लिए दे दूंगा उस कार को और 3-4 दिन के लिए वो कार मेरे पास नहीं रहेगी, देन वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कार. फिर जब हमें ऑटो, उबर, ओला, बस से जब जाना पड़ेगा तब मालूम चलता है यार कार कितनी इंपॉर्टेंट थी. सो नो आई कैन सेंस दिस थिंग हैपनिंग विद दीज स्टूडेंट्स हियर. मतलब मैंने एक्चुअली पर्सनली बात भी की है काफी स्टूडेंट्स से 1-to-1 जो आईआईटी में जा चुके हैं और जो अभी पढ़ रहे हैं उनसे भी. एंड फाइनली आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद दिस पॉइंट हियर कि ये अभी होता है यहाँ पर ये कि जो फैकल्टीज अपन को डे 1 से पढ़ा रही थी, वी कमिटेड यू व्हेन यू टुक एडमिशन विद अस. हमने उसमें भी कमिट किया था कि जो फैकल्टी टीम है वो पिछले कई सालों से सेम है एंड इट विल कंटिन्यू टू रिमेन सेम. एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ इंस्टीट्यूट, रादर द बिगेस्ट, ओनली स्ट्रेंथ आई शुड से. सो इन स्टूडेंट के साथ में ये हो रहा है कि दे कम फॉर दीज लेक्चर्स, दीज फैकल्टीज टेक द क्लासेस एंड दे गो बैक होम. देयर आर इंस्टीट्यूट्स, लेट्स नॉट इवन नेम एनी हियर, उसमें क्या होता है कि आप पढ़ने गए, आपको एक फैकल्टी ने अच्छा पढ़ा दिया, यू आर वेरी हैप्पी विद दैट, देन समवन एल्स केम, कोई दूसरा आ गया बीच में, आपके फ्रेंड्स हैं, जस्ट आस्क देम, इट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो एक टॉपिक पढ़ाया, दूसरे टॉपिक के लिए कोई और पढ़ाने आ गया एंड यू गॉट अटैच्ड विद द फर्स्ट फैकल्टी. फिर 1 महीना तो उससे अटैच होने में लग जाता है
बीच में देयर इज सिस्टम कॉल्ड फीडबैक सिस्टम. द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट विल आस्क दी स्टूडेंट्स, अच्छा नए सर आए हैं, ये कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल आर सेइंग अच्छा पढ़ाते हैं, चलो यू कंटिन्यू विद दैट. अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो चेंज द गाय. मतलब ऐसा तो आपने यहाँ पर देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा. इट जस्ट डजंट हैपन हियर. The people who are taking lectures with you, they all BTech from IITs with experience of almost 14, 15, 16 years and over and above people like DC Pandey sir, जिनकी किताब लगभग पूरी इंडिया पढ़ती है अभी भी लोग बिलीव नहीं करते कि DC पांडे सर यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाते हैं. तो ना ये अपने आप एक स्ट्रेंथ है. So at least you can trust on that matter कि भाई आप ऐसे लोगों के साथ अगर 1.5-2 साल रह रहे हो, उसमें भी there will be a huge difference, there will be huge difference. So try to recall these strengths कि आपने 11वीं में रहते हुए 12वीं का पेपर क्रैक कर दिया लगभग, जो आप करने वाले हो अप्रैल में. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. देन पढ़ाने वाले आपको ठीक ठाक है यहाँ पे. देन आपने कुछ ना कुछ तो पहले किया भी है. यू हैव डन समथिंग इन लास्ट 7-8 मंथ्स. एक आध टॉपिक को अच्छा किया होगा, बैर मिनिमम बता रहा हूं. तो दैट विल प्रॉब्ली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. अच्छा ये पॉइंट इधर आ गया, रिवीजन विल बूस्ट. ये पहले बोल चुका हूं, रिवीजन विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड स्कोर. मैं बता रहा था ना आपको कि सितंबर तक हम लोग टॉपिक खत्म करा देंगे. अभी नेक्स्ट 7 मंथ्स में. फिर उसके बाद में जो रिवीजन चलेंगे उसमें यू कांट इवन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस विल इट स्टार्ट मेकिंग. एकदम फर्क आना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर. क्योंकि अभी जो आज मैंने एसएचएम पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो लोग एकदम ऐसे आंख खोल खोल के देख रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं सर. ठीक है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन सुना ही नहीं आ सकता क्या होता है, राइट. अब आपको या तो पूरा समझ में आएगा या थोड़ा समझ में आएगा. और जब हम इसके बारे में दोबारा से सितंबर में वापस रिकॉल करना स्टार्ट करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे, देन यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. यू विल बी एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग. आप बोलोगे यार ये टॉपिक तो नया टॉपिक है ही नहीं, ये तो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं पहले. ऑल सच थिंग्स. देन लॉन्ग सिटिंग्स. यस लॉन्ग सिटिंग्स. सी मेनी पेरेंट्स हैव सजेस्टेड अस कि सर आप ये डबल क्लासेस मत लिया कीजिए. कई बार हमारी क्लास 2 आती है, 5 घंटे क्लास होती है. तो आई थॉट ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ऑल्सो हियर. जेई का जो एग्जाम होता है ना मेंस का, वो 3 घंटे का होता है. और जब आप एग्जाम देने बैठे हो उस 3 घंटे में उस हॉल में, और आपको पता है कि इस एग्जाम में थोड़ी ऊंच नीच हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इट इज गोना हैम्पर योर फ्यूचर. द प्रेशर लेवल इज वेरी हाई. यू आर वेरी टेंस बिकॉज ऑफ दैट. Of course, we will talk about many strategies such that the pressure will come down. We will talk about that also. बाद में जब सही टाइम पर, अभी इसकी बात नहीं कर रहा. बट ये चीज आप सब लोग मानते हैं कि वो 3 घंटे ऐसे तो नहीं होंगे कि वो आराम से फोन में बात कर रहा होगा या इधर उधर की बारे में सोच रहा होगा. व्हाट्सएप पे कितने लाइक हैं सोचेगा भी नहीं, व्हाट्सएप पे कितने लाइक है, राइट. उस 3 घंटे ना उसकी हालत टाइट रहेगी. अब मुझे बताइए, इफ यू आर एक्सपेक्टेड टू सिट फॉर दोज 3 hours इन एग्जामिनेशन हॉल, कांट वी एक्सपेक्ट यू टू सिट फॉर 4 hours हियर? ऑब्वियसली यस. तब वहां के 3 घंटे का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू प्रॉब्ली 5 or 6 hours हियर. तो पहली चीज तो ये है कि घर पे भी ना योर सिटिंग शुड, आई मीन यू शुड हैव रेगुलर सिटिंग्स ऑफ 3 hours. 3 घंटे की तो आपकी रेगुलर सिटिंग होनी चाहिए जिसमें आप 1 मिनट भी नहीं उठोगे. यू विल नॉट इवन गेट अप इवन वंस, बिकॉज यू डू द सेम थिंग इन एग्जामिनेशंस आल्सो. एग्जाम में मतलब आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, सचिन तेंदुलकर आपका आइडल है, आपको लगता है सचिन से कहीं मिलना ही है किसी तरह, और आप एग्जाम दे रहे हो और आपको फोन करके बोले अरे सचिन बैठा है बाहर वेट कर रहा है आपका. आप बोलेगे भाड़ में गया सचिन तेंदुलकर, मेरा एग्जाम जाने दो पहले. लाइक बिल्कुल साइकोलॉजी चेंज होती है उस टाइम पर. तो सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो. तो आप वहां 3 घंटे बैठ सकते हैं, तो यहां भी आपको 3 से 4 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए. तो आई रिपीट, नॉट इवन फॉर अ सिंगल मिनट यू शुड स्टैंड. आप 1 मिनट के लिए बाहर नहीं जाने चाहिए, 1 मिनट के लिए भी. So that way you will be able to develop the stamina. Here I am talking about JEE mains. Here I am talking about JEE mains. जब पेपर 3 घंटे का होता है. JEE advance 3 घंटा प्लस 3 घंटा, वो 6 घंटे का होता है. सोचेंगे पीछे ब्रेक होता है 2 घंटे का, उस ब्रेक में और हालत टाइट रहती है. लोगों की शक्ल देख के, कोई अगर स्माइल भी कर गया ना कोई दूसरा स्टूडेंट, अरे यार तो कितना खुश है, इसका पेपर अच्छा गया है, मेरा खराब गया है, पता नहीं क्या होगा, ऑल सच थिंग. तो 8 घंटे का प्रेशर होता है वो, 8 hours. I have seen many students who are conceptually very sound, who are very good at examination skills also. मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कंसेप्ट में बहुत अच्छे हैं, उनकी एग्जाम स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं. बट पेपर 2 के आते आते बैंड बज जाती है उन लोगों की. I mean they start feeling very tired. एकदम स्टैमिना जवाब दे जाता है उनका. पहला पेपर 3 घंटे का अच्छा देंगे, दूसरा पेपर 3 घंटे का है, उसका 1 घंटा अच्छा देंगे, फिर अगले 2 घंटे से हो नहीं पाते. So you have to build that stamina. तो इससे डबल फायदा है ना, आपका स्टैमिना ही बढ़ जाएगा और प्लस आपको लॉन्ग सिटिंग मिल रही है तो पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी.
So try to incorporate this habit of sitting for 3 hours. And when we are incorporating classes of 5 hours, sometimes 9 hours also, I guess. मैंने एक आध लेक्चर शायद कभी कभार 9 घंटे का भी डाला है. And the whole purpose was this कि इनको आदत होनी चाहिए पूरा दिन रहने की, क्योंकि 10 बजे एग्जाम चालू होगा आपका. मे एडवांस का जो एग्जाम है, स्टार्ट एट 10 AM, 10 to 1, then 3 to 6. तो 10 से 6, 8 घंटे की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए थे. तो यहाँ पर हम लोग 3 लेक्चर डाल देते हैं 7.5 घंटे के, विद अ ब्रेक ऑफ 1.5 hours. So 9 hours is okay with that. So we do it purposely, and you should actually support us for that matter. कि हाँ ठीक है कि 3 लेक्चर डाल दिए तो उनका थोड़ा स्टैमिना बिल्ड हो जाए. Anyways, so long sittings, yes. So you must be comfortable with these sittings here. 6 months of rigorous training. Okay. For any reason, if you feel that it's becoming very difficult for me as a student to cope up with school as well as this, or maybe if I feel that I am getting very much distracted because of Facebook or sports or extracurricular activities or whatever, then we ask these students to just give us their next 6 months. अब एक काम करो, अभी आज क्या है, आज today is I guess 18th, 19th Feb 2017. So you just continue till August. अभी में आप 6 महीने और ऐड कर दो, अगस्त तक आप 2 साल 3 साल 4 साल नहीं बोल रहा हूं, I'm just saying 6 months. ठीक है, तो 6 months अगर आप बहुत रिगरसली पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आप इमेजिन करो कि आपको 6 months के बाद आपको कुछ नहीं करना, मतलब यू विल बी फ्री, यू जस्ट प्रिपेयर फॉर 6 months, दैट्स इट. Then by this extra effort you are putting on daily basis for next 6 months, you will get in a groove. अब आपकी एक आदत सी पड़ जाएगी, आप एक ढांचे में चलने जाएंगे जहां पर आपको लगेगा कि यार यही चीज तो बहुत नॉर्मल है, and I can anyways do it, and your score will start improving. So there will be kind of a pressure, a good pressure, maybe it's social pressure, whatever it is, but that is a positive pressure over you कि यार हमें आगे भी कंटिन्यू करना है. तो आप इसको ऐसे फील करो, आप ऐसे मान के चलो कि आपको जेईई तक नहीं पढ़ाई करनी है, आपको बस 18 अगस्त तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद में जो आपको करना है कर लो. अब मुझे पता है कि 18 अगस्त तक आपने पढ़ाई चीजें कर ली, एंड इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग इन द राइट वे, थिंग्स आर फॉलोइंग एट राइट प्लेस, so you will reach a level where you will never look back. आपका ही मन नहीं करेगा उसको वापस छोड़ने का, आपको पता ही कंट्रोल आ गया अपने हाथ में. Then you start considering, अरे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, you start talking those lanes. अभी तो ये होता है कि यार स्कूल का प्रेशर, इसका प्रेशर, ये सोचोगे भी नहीं आप उस टाइम पे. So just give 6 months, and उसको फर्दर बाइफिकेट कर सकते हैं 1 month, 1 month ही कर लो. वो 1 month मुझे पता है 6 महीने हो जाता है, 6 महीने अपने आप चले जाता है. ओके, दिस इज द बेयर मिनिमम. मतलब जिसे कहते हैं ना, अगर सब कुछ खराब हो जाए, एवरीथिंग गोज अगेंस्ट अस. You had an aim when you joined us, but for any reason, if you feel that no, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, नहीं हो पा रहा, तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे उसमें केबीसी में, आई फॉरगॉट एग्जैक्ट थिंग, केबीसी में होता है ना कि पड़ाव बोलते हैं, राइट, कि 15 लाख रुपीस आपके हो गए, आपका अगला क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा, देन ऑल्सो यू विल गेट दो 15 लाख रुपीस. तो दैट मच अमाउंट इज लॉक्ड. तो एक बेयर मिनिमम लॉकिंग तो मैं आपसे इंश्योर कर सकता हूं. व्हेन यू आर विद प्राइम अकेडमी और फॉर दैट मैटर एनी गुड इंस्टीट्यूट, then one bare minimum locking can be ensured, that is you stick with the curriculum of that institute for the whole session, that is 1.5 years, 2 years, whatever it is. I'm sure बोर्ड में आपका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, जेई मेंस में भी आप निकाल ही लेते हो, because students who are not able to clear JEE means they are those students who left us in between. वो अभी फेब मार्च में आपका स्कूल का एग्जाम आएगा, स्कूल के एग्जाम में परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया 11th के, so they leave us at that point of time. These are the students who don't get good score or they are not able to get JEE mains, they don't clear JEE mains. तो अगर आप इस चीज का एश्योरेंस रखते हो कि बस आप इसको कंटिन्यू भी कर जाओगे फ्लो को, बस आपको क्या करना है, आपको क्लास आना है, क्लास में सब कुछ सुनना है और घर पे जाके उन चीजों को रिवाइज करना है और जितना हो सके होमवर्क करना है, बस. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम यू नाउ. आपको क्लास आना है, आपको घर पे आके पूरा रिवाइज करना है, एंड ट्राई टू सॉल्व एज मच होमवर्क एज यू कैन, दैट्स इट. Then also I am sure like JEE means तो क्लियर हो जाता है. That's what we have seen. थोड़ा एक और नीचे की बात करूं तो ऐसे बोल सकता हूं कि what is the other option in case few students were saying that कि मुश्किल हो रही है, they leave. What will
they do then? What they start doing after that? I have seen things become worse. अभी तो कम से कम एक डिसिप्लिन नहीं पता है कि आपको स्कूल जाना है, फिर प्राइम एकेडमी में आना है, आपको उस स्कूल में रहना है, उन बच्चों के साथ रहना है, और आपके साथ वो फैकल्टीज हैं जो आपको 2.5 घंटे आपको रोज फेस करने हैं. तो you are actually following a very nice system. If you cut it, then what? तो आप क्या करोगे उस टाइम पर? फिर वही होगा, फिर आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ज्यादा जाओगे, आपके दोस्त उल्टे सीधे ज्यादा पढ़ेंगे और टाइम पास ज्यादा होगा, एंड थिंग्स विल स्टार्ट डिटोरेटिंग फर्दर. एंड दैट आई हैव सीन, आई एम टेलिंग, आई हैव सीन. बिकॉज ऐसा नहीं कि हर साल एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे तो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही प्राइम में ला सकते हैं, ऐसा नहीं है. वी ऑलवेज सी दैट उसमें 10-15% बच्चे लास्ट तक छोड़ जाते हैं. एंड देन वी लुक एट व्हाट एग्जैक्टली दोस 10-15% आर डूइंग, देन वी रियलाइज कि क्या फायदा. फिर 10-15% बच्चे जो है वो और खराब हो गए फिर, क्योंकि उनके पास अभी एम ही नहीं है कुछ. स्कूल उन्हें इजी लग रहा है और घर पे टाइम पास चल रहा है. So, I mean, this is for, as I said, this is the bare minimum. It should never be the agenda actually for any good student. Okay. अच्छा, what next if you feel that things are going good? अब ये तो उनके उस हिसाब से हो गया कि कोई टॉपिक अच्छा नहीं चल रहा है, कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, या ओवरऑल स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है. But there are many students who feel that no, they are very much comfortable, सब कुछ ठीक चल रहा है. उनके लिए क्या? Then the first thing is aim at improved rank. अगर आपकी रैंक अगर 11 आई थी टेस्ट में, which is a very good rank. अगर आपकी प्राइम एकेडमी में 200 बच्चों में से 11 रैंक आ गई तो मतलब बहुत अच्छी रैंक मानी जाएगी, क्योंकि वो डेफिनेटली वो 200 में से आप देखोगे 100 के आसपास चले जाते हैं आईआईटीज के अंदर. तो 11 का आप 9 बनाने की कोशिश कीजिए, 7 बनाने की कोशिश कीजिए, एंड ट्राई टू वर्क ऑन योर वीक टॉपिक्स. देन आई एम श्योर आप 11 रैंक के अंदर आ पा रहे हो, तो 11, 12, 13 whatever, I'm just taking a number here, hypothetical number. So I'm sure like आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, तो फिर हम आपके जो माइन्यूट पॉइंट्स हैं उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि मे भी शायद आपका ये टॉपिक ठीक नहीं है, बट अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इजी है काफी, तो नेक्स्ट इजी टॉपिक आने वाला है, तो यू विल गेट सम मोर टाइम. देन यू डू वन थिंग, यू स्टार्ट सॉल्विंग दीस प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस टॉपिक, तो पुराना वाला कवर हो जाएगा. सो दैट वे you should take it positively. I mean that competition, एक healthy atmosphere में और अच्छा compete करने की कोशिश करो. Work on weak topics, I just told you. Increase faculty interaction. After the lecture, before the lecture, maybe some appointments you can always take and just ask us कि सर इसमें क्या किया जाए और what our suggestions are for you to improve things further. See, this is a slide which is as it is. I showed this slide couple of months back. जब हमारा फर्स्ट पीटीएम हुआ था तो वही सेम स्लाइड थी, इसमें कुछ भी चेंज किया मैंने. एंड आई कैन सी लाइक आई डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स. मैं ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए भी होमवर्क हो गया कि ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके थे, और अब इसमें से आप कहां पर हैं. स्टूडेंट्स तो हैं ही जो कर रहे हैं, पेरेंट्स एग्जैक्टली अपना कितना रोल कितना चीजें प्ले कर रहे हैं. मे बी इट्स काइंड ऑफ आई शुड से अ चेक फॉर देम. वी आर डिस्कस अबाउट दिस दैट एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम फ्रॉम द लेक्चर्स. मतलब क्या बात की थी मैंने कि लेक्चर में आपको सारे लेक्चर अटेंड करते हैं, यू हैव टू आस्क ऑल डाउट्स एंड यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग आफ्टर गोइंग बैक होम. आई सॉ, अनफॉर्चुनेटली आई कुड ऑब्जर्व दिस थिंग दैट many students, they royally bunked classes whenever they had school exams, and it was of course known to their parents also. And I'm surprised कि कैसे हुआ कि कल का एग्जाम है, कल एग्जाम है और स्कूल का एग्जाम है, आज प्राइम की क्लास है और आज स्टूडेंट प्राइम की क्लास में नहीं आ रहा है. पेरेंट्स को पता ही होगा और ये भी पेरेंट्स को पता था, तो हम बच्चों से कैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर हम खुद ही गलती कर रहे हैं इस केस में, राइट. तो इसमें थोड़ा सा और मैं डिटेल से बात करूं एग्जाम्स को लेकर. तो जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये आपको एक दिन के नोटिस में नहीं बताते हैं. स्कूल के जो एग्जाम्स हैं ये आपको एक दिन के नोटिस में नहीं बताते हैं कि आज आपको शाम को मैसेज आएगा कि कल आपका हाफ ईयरली एग्जाम है. इट्स नॉट लाइक दैट. You are well aware of these exams 1, 2 or sometimes 3 months in advance. आपको 1, 2, 3 महीने पहले पता होता है ये आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, राइट. ओके फाइन. एक्चुअली होता ये है कि जब आपको पता है कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, मान लो आज है 18th Feb, sorry 19th Feb, today is 19th Feb 2017. ठीक है. अभी जैसे मान लो 19 मार्च को लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं. 19 मार्च 2017 को आपका एक फिजिक्स का या से इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है. सब्जेक्ट लेते हैं इंग्लिश का एक टेस्ट होने वाला है स्कूल में. फाइन.
18 मार्च को हमारी कोई क्लास होगी शायद, बाय डिफॉल्ट रोज ही होती है क्लासेस। अभी थोड़ा इसको एंटिसिपेट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू एंटिसिपेट थिंग्स। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल they were very visionary, उनको मालूम था आगे क्या होने वाला है, that's why they are successful. So let's try to do something from this very simple example here. 19 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, 18 मार्च को हमारा एक क्लास होगा शाम को, एंड आई नो दैट 18 मार्च को कुछ बच्चे नहीं आएंगे क्लास में, एंड व्हेन द पेरेंट्स विल गेट अ कॉल फ्रॉम अ काउंसलर और मैसेज, एसएमएस आएगा या फिर कॉल आएगा, तो रिपोर्ट ये आएगी, अरे कल नेक्स्ट डे टेस्ट था उसका। मेरा डाउट ये है, टेस्ट तो था आपका, ये आपको आज भी पता है ना, और आप उस क्लास में नहीं आके आपने कितना टाइम सेव कर लिया, 3 hours, मैक्सिमम 4 hours, राइट? So you saved 4 hours by bunking that not so important class which students feel sometime just to prepare for this. Then can't you extract these 4 hours or can't you adjust these 4 hours in a month? आप इस पूरे महीने में उस 4 घंटे को एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? I refuse to believe. I refuse to believe अगर बोला जाए नहीं बिल्कुल प्रेशराइज्ड सिचुएशन है, बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है, तो यही 4 घंटे इसको मिलेंगे इसको पढ़ने के लिए। इवन आपको पता है 1 महीने पहले ऐसा कभी नहीं होता, 100% है, 4 क्या 40 घंटे निकल जाएंगे, 40 घंटे, आई एम नॉट एग्जीगरेटिंग, 1 महीने के अंदर जहां पर वो पढ़ सकता था उसके बारे में। वन सेकेंड इज just because this was about the exam thing. Yeah, second is एग्जाम से 1 दिन पहले आपने खाया तो खाना तो खाया होगा, नहा के भी गए होंगे, सोए भी होंगे, तो वो चीज तो नहीं हमने अच्छी की ना, कि मतलब इसका व्हाट द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दिस। 18 मार्च को आप खाना भी खा रहे हो, आप सो भी रहे हो, आप कपड़े भी पहन रहे हो, राइट? तो दैट मीन्स you think that those things are important and cannot be avoided, right? That means you are pretty much clear about this thing, that those things are unavoidable. आपको सोना तो जरूरी है, खाना भी जरूरी है, नहाना भी जरूरी है, कपड़े भी पहनने जरूरी हैं, बट एक क्लास जरूरी नहीं है शायद। So maybe that is something which is in back of the mind. Again I'm telling you, it doesn't work that way. आप क्लास मिस करते हो, आप अगली क्लास कैसे समझ सकते हो? I don't understand that. I just don't understand that. आपको नेक्स्ट लेक्चर नहीं समझ में आता है, and believe me, वही धीरे धीरे फाइनली एक बेस बन जाता है फेलियर के बाद में। So please give due respect to these lectures in unavoidable circumstances, and this is not unavoidable circumstance. You know about this exam 1 month in advance. In fact, आप क्रॉस चेक कीजिएगा, एक लड़का था विशाल शर्मा, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर लेट ज्वाइन किया था, आई एम टॉकिंग विमान नगर बैच ओनली, 1 साल लेट ज्वाइन किया था विशाल, 2 बच्चे थे, विशाल शर्मा और आपको अदर नेम एक्चुअली 2 स्टूडेंट थे, उन दोनों ने 1 साल लेट ज्वाइन किया बिकॉज उनके फादर पोस्टिंग हुई थी यहाँ पर, 1 साल बाद पुणे आए थे। तो जब उन्होंने प्राइम ज्वाइन किया, दे हैड अ वेरी टफ टाइम इनिशियली, क्योंकि दे वर कंपीटिंग विद दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन प्राइम एकेडमी सिंस लास्ट 1 ईयर। तो उनकी पढ़ाई 1 महीने की थी, बाकियों की 13 महीने की, तो बट ऑब्वियस है इन बच्चों का परफॉर्मेंस खराब होता था, बट दे वर वेरी क्लियर कि यार हमें पढ़ना तो है, और हमारे नंबर कम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम मंदबुद्धि हैं, हमारे नंबर कम इसलिए आ रहे हैं बिकॉज हमने 1 साल यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया था। फेयर इनफ, वी विल ट्राई फॉर दैट। बाकी बच्चे 4 घंटे पढ़ते थे या 8 घंटे पढ़ते थे, तो भी इनका रिजल्ट देखोगे आप तो लास्ट में रहता था, बट स्टिल दे कंटिन्यूड करते गए। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में एक ऐसी स्टेज आ गई वेयर दे वर एट पार विद अदर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स बाकियों के लेवल पे आ गए। ज्वाइन 1 साल लेट किया था, स्टार्टिंग के 6 महीने एकदम हालत टाइट थी, दे वर वर्किंग डबल, स्टिल रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, स्टिल दे वर सेल्फ मोटिवेटेड, और 6 मंथ्स में उनके बराबर आ गए, बाकियों के बराबर आ गए। और उसके बाद में दे हैड एन ऑप्शन कि भाई जितना बाकी लोग पढ़ रहे हो तो हम भी पढ़ लेंगे, बट सिंस दे हैड गेन्ड अ मोमेंटम, एक मोमेंटम गेन कर चुके थे, विद दैट एक्स्ट्रा मोमेंटम वो पढ़ते ही चले गए एक्स्ट्रा, फाइनली बोथ ऑफ देम क्लियर्ड आईआईटी। ऐसे बहुत सारे केसेस है, मतलब समवन हु इज इन आर्मी मस्ट बी नोइंग, देयर वाज ब्रिगेडियर शर्मा 2-3 years बैक, दिस गाय आल्सो जॉइंड अस वेरी लेट, आदित्य शर्मा ने भी बहुत लेट ज्वाइन, काफी लेट ज्वाइन किया था, अगेन सेम हालत थी उसकी भी। 1 साल था, पहले 6 महीने की उसकी रैंक लास्ट के पेज पे दिखती थी, फिर 6 महीने बाद बराबर आया बाकियों के, बट इतना ज्यादा मोटिवेटेड था बंदा, मतलब ही वाज ऑपरेटेड, उसका एक ऑपरेशन हुआ था, और ही यूज्ड टू अटेंड लेक्चर्स इन पिंपरी, फादर वाज इन सीएमई, और ऑपरेशन उसका सदर्न कमांड हॉस्पिटल में हुआ था।
डॉक्टर स्ट्रिक्टली सेड उसको इस हॉस्पिटल से बाहर जाना अलाउड नहीं है। उसको टाइम दिया शायद हफ्ते 10 दिन का, फॉर अ वीक और 10 days ही इज नॉट अलाउड टू लीव द हॉस्पिटल। शायद आईसीयू में था, इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। दो फादर वाज ब्रिगेडियर, सो मे बी सम बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ही कुड कन्विंस दोस डॉक्टर्स यार इसकी क्लास होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ने कहा अरे आपका दिमाग खराब है यार, क्लास होती है, आप इसको हम उठा नहीं सकते यहाँ से। somehow they managed, and that guy who used to stay near me and used to attend lectures at Pimpri, he started lectures at MG Road. वहां पर एक डॉक्टर बाहर आता था, मम्मी उसकी हर लेक्चर बाहर रहती थी, मतलब वैसे पेशेंट अंदर गया ऐसा दिखता था हमको वहां पर। दैट वाज द डेडिकेशन ही हैड। फाइनली आई मीन वी आल्सो कुड सी दिस थिंग नो। तो और फैकल्टी यूज्ड टू गो टू हिज हाउस। हमने देख लिया है उसको आना इतना मुश्किल होता है, तो फिर ठीक है, तब वी कैन आल्सो गो आउट ऑफ वे। तो फैकल्टी यूज्ड टू गो टू हिज हाउस, घर पे रह के पढ़ाते थे। तो वो तब करते थे जब हमने देखा कि इसकी साइड से भी इतने एफर्ट्स आ रहे हैं एक्चुअली, राइट। आई मीन यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू कम हाउस एंड टीच ऑफ कोर्स। तो देन फाइनली व्हाट हैपेंड, ही क्लियर्ड आईआईटी, निकाला उसने जेई, और जो चीजें उसने पढ़ाई के टाइम पर 2 साल बिल्कुल नहीं की थी, अब सब करनी स्टार्ट कर दी उसने। व्हेन ही वाज कंप्लीट इन ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ही बिकेम अ वेरी वाइब्रेंट पर्सनालिटी। जिसको आप देखोगे उसको फेसबुक पे फॉलो करो उसको, दिस गाय इज आदित्य शर्मा। जॉब भी उसकी बहुत अच्छी लगी है कि यूएस सिलिकॉन वैली में लगी है शायद। तो लाइक ऐसा थोड़ा सा माइंडसेट होना पड़ेगा। और ये स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट किया था मैंने पॉइंट की दीस गाइस रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासेस एक्चुअली, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। वैसे ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं बात कर चुका हूं उनके बारे में। प्रायोरिटाइज एकेडमिक्स विद विजन। यू व्हेन आई से फर्स्ट टाइम प्रायोरिटाइज एकेडमिक्स विद विजन, आई मीन टू से डोंट कन्विंस योरसेल्फ कि आप स्कूल में नंबर नहीं आ रहे हैं तो स्कूल पे ध्यान दे देते हैं। चलो 1 मिनट आपने ध्यान दे भी दिया, तो फाइनली क्या होगा वहां पर? उसके बाद ये होगा कि आपके 5-10% नंबर बढ़ जाएंगे। बिकॉज ये ऐसा होता है, मतलब ये हमेशा होता है कि 12th का स्कोर जो होता है ना बच्चों का, 11th का से बहुत फर्क आता है। अगेन आई कैन यूज द नेम ऑल्सो हियर। एक लड़का था अभिषेक दहिया, हिज नेम इज अभिषेक दहिया। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग हिम। विमाननगर बैच का था, AB 2 या 3 का था। दिस गाय फ्लंक्ड इन मिड टर्म एग्जामिनेशन, जो बीच में एग्जाम्स होते हैं उसमें फेल कर दिया उसको मैथ में, व्हाटएवर इट इज। तो फाइनली उसका बोर्ड का स्कोर 100 आउट ऑफ 100 था। ही गॉट 100 आउट ऑफ 100। ही इज एन आईटी खड़गपुर राइट नाउ। तो ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, आपका स्कोर कम है, इस तरह बाद में बात कर लेंगे एक बार। लेकिन दैट डजंट गिव द करेक्ट पिक्चर। तो स्कूल के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही या स्कूल के एग्जाम के हिसाब से ही आप इसको बैक सीट पे मत रखिए। स्टिक विद कंटेम्परेरी टॉपिक्स बात की हमने, अभी के टॉपिक्स करो, पुराने टॉपिक्स को बाद में करना, पहले अभी टॉपिक पे ध्यान दीजिए। स्टार्ट स्कूल टॉपिक एंड गिव आईटी टॉपिक। अगर आपका मान लो एग्जाम चल रहे हैं, आपके एंड सेम एग्जाम चल रहे हैं या फिर फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, और आपको एक टॉपिक करना है जैसे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज इन क्लास 11th, और वो क्लास 11th के एनुअल एग्जाम में आएगा। तो ग्रेविटेशन को आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, फिर उसके 2-3 क्वेश्चन जेई के भी कर लो उसके साथ साथ। टॉपिक तो सेम है, ये तो उसमें तो आपको वो भी बताएगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर जेई एंड योर स्कूल सिलेबस, इज सेम। 2% का फर्क होगा विच कैन बी मैनेज विद इन 1 डे और 2 डेज। तो अगर आपके स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, स्कूल का यूनिट टेस्ट चल रहा है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो स्कूल के लिए खत्म कीजिए उस टॉपिक को एंड जस्ट गिव आईटी टॉपिक। उसके 1-2 क्वेश्चन आईटी कर लो, फिर जेई के कर लो, तो जरा फ्लो बना रहता है। एग्जाम प्रिपरेशन शुड स्टार्ट वेल एडवांस। अब डोंट बी इन इल्यूजन कि आपका कल एग्जाम है तो आज पढ़ाई करेंगे। ये आपके 10th के एग्जाम्स नहीं है जो आप आज शाम को भी आप पढ़ लेंगे 10 कंट्रीज की कैपिटल्स क्या क्या है और आप कल एग्जाम में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इन एग्जाम की प्रिपरेशन एक दिन पहले नहीं होती है। इनफैक्ट एक्चुअल एग्जाम के दिन तो हम तो ये बोलते हैं कि एक दिन पहले आप पढ़ो भी मत, ठीक है। नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट दैट, बट यस व्हाट आई वांट टू से इज एक दिन पहले इसकी पढ़ाई नहीं होती है, ये पूरे महीना 2 महीना 3 महीना होता है। और लास्ट डे तो आपको जल्दी सोना चाहिए थोड़ा सा, ताकि मूड थोड़ा फ्रेश रहे एग्जाम के लिए। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस, एग्जाम की एनालिसिस नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है, वी टॉक्ड अबाउट दैट। मिनी एग्जाम्स एंड होमवर्क ऑन डेली बेसिस। सी we just discussed about this thing that it is not possible for us, neither for you, to increase the frequency of exam. अगर हम रोज एग्जाम देना चालू कर देंगे ये सोच के कि एग्जाम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो somewhere you will be doing injustice to your concepts. उसके लिए टाइम कहाँ से निकालोगे? So there is something which can balance both things. I usually call it mini exam. तो जैसे आपको आपका कोई लेक्चर हुआ, लेक्चर को घर पे जाके आपने रिवाइज किया अपनी नोटबुक से, रेफरेंस बुक से थोड़े थोड़े पॉइंट्स देख लिए जहां आपको डाउट लगता है,
फिर उसके सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स। आई रिपीट, एक बार आपने घर जाके लेक्चर रिवाइज कर लिया अपने नोटबुक से, देन उसके बाद उसके नोटबुक से रिवाइज कर रहे हो तो देन यू हैव टू कंप्लीट ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच वी लेफ्ट अनफिनिश्ड। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम क्लास में आधे छोड़ देते हैं, आधा करा के छोड़ दिया, तो उन क्वेश्चंस को पूरा करते करते आप देखोगे कि वो लेक्चर जो है ना, वो 2.5 घंटे का लेक्चर 3 घंटे में खत्म होता है घर पे, 3 या 4 घंटे में खत्म होता है वो पूरा लेक्चर। यू नीड एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स टू एब्जॉर्ब दो 2.5 आवर्स। उसके बाद में जो आपको होमवर्क दिया गया है उसमें आप प्रेफरेबली सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करना चालू करो, सो यू विल ऑलवेज बी हैविंग अ बैक सपोर्ट, देयर विल बी सपोर्ट देयर कि कोई क्वेश्चन आप करोगे अटक गए सॉल्यूशन देख सकते हो एटलीस्ट। सो बाय द टाइम यू एंड अप सॉल्विंग 5, 6, 7 प्रॉब्लम्स यू विल गेन कॉन्फिडेंस फॉर अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स। और जब अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स पे आते हो ना, तो ट्राई टू डू दोस प्रॉब्लम्स इन टाइम लिमिट। जैसे आपको 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन के लिए आपके पास मान लो 1 घंटा है, तो आप टाइमर सेट कर दो, या 10 बजे से 11 बजे तक मैं 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करूंगा। और आपको लगता है पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो छोड़ के सेकंड पे आ जाओ, क्योंकि आपका एजेंडा क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ये भी है कि कितना स्कोर आप गेन कर सकते हो। आई होप यू गेटिंग पॉइंट। व्हेन यू आर डूइंग दोस 10 प्रॉब्लम्स इन द टाइम फ्रेम, देन बिसाइड्स गेनिंग conceptual knowledge, you are somewhere getting examination skills also, because जैसे आपने क्वेश्चन 1 पढ़ा, आपको लगा डिफिकल्ट है, छोड़ के सेकंड पे आ जाओ, और सेकंड लगा कर सकते हैं सेकंड को कर लो। बीच में सेकंड को करते करते आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं इजी हूं, लेकिन करते टाइम पता लगा कि डिफिकल्ट है, तो नेक्स्ट टाइम आप और ज्यादा मैच्योर हो जाओगे कि आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन इल्यूजन क्रिएट करता है कई बार, और वो इल्यूजन आपके नंबर कम कर देते हैं। मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था इस बारे में एक बात कि एग्जाम स्किल्स जो होती है ना, दीज आर लाइक रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स की तरह होती है। जैसे हम लोग कोई बहुत गर्म सी चीज को छुएंगे, मान लो ये एक हॉट आयरन रॉड है, इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है, तो जब मैं इसको छूता हूं तो मैं हाथ हटाता हूं ऑब्वियसली, तो वो हाथ में ये सोच के नहीं हटाता हूं कि ये 150 डिग्री सेल्सियस है, ये सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस है, तो द डिफरेंस ऑफ 125 डिग्री सेल्सियस, एंड एज पर द थ्योरी ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस टू दिस एंड दैट विल स्टार्ट रप्चरिंग माय टिश्यूज। तो ये सब नहीं सोचता हूं उस टाइम पर, it just directly pull back. Same is the case with these questions when you take these tests. जब टेस्ट देते हो आप एक, तो क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो आपको एक रिस्पॉन्स होता है इस क्वेश्चन को करना है कि नहीं करना है। आपको इतना टाइम नहीं था क्वेश्चन को पूरा पढ़ो फिर बहुत सोचो अच्छा करूं क्या इसको, ऐसा नहीं होता। वो एकदम आइडिया लगना चाहिए आपको करना है कि नहीं करना। एंड दोज गाइज हु आर यूजुअली अमंग टॉपर्स, जो हमारी लिस्ट में टॉप में रहते हैं ना, दे हैव गॉट अ नेचुरल रिस्पॉन्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो नेचुरली काफी अच्छे हैं इस चीज में, तो उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि भले आप उनके कंसेप्ट आपसे कम भी होंगे ना, तो भी उस पेपर में आपसे नंबर ज्यादा लेके आते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। तो दिस इज द रिस्पॉन्स यू विल स्टार्ट डेवलपिंग व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस एट होम अंडर टाइम कंस्ट्रेंट। तो जब बता रहा था मैं 10 क्वेश्चंस की एक लिस्ट ली है, 1 घंटा आपने अलॉट किया अपने को, तो आपको जज करना है कि भाई अभी तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है और आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा बचा है मेरे पास, तो मतलब कहीं ना कहीं आई एम ट्राइंग टू सेलेक्ट दोस प्रॉब्लम्स व्हिच आई शुड हैव रिजेक्टेड। अब फिर एलिमिनेशन मोड पे चले जाते हो थोड़ा सा, तो ये सब चीजें आपको फायदा करती हैं। और फिर आपको 1 घंटा हो जाए, फिर आप इवैल्यूएट कीजिए आप कि कितने क्वेश्चन आपने ऐसे कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे, और कौन से ऐसे रह गए जो करने चाहिए थे। तो धीरे धीरे डेली बेसिस पे बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है, एकदम बूंद 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 करके एकदम सागर भर जाता है इसमें। इट गोज लाइक दिस। तो सडन बस नहीं होगा कि आप सोचो कि कोई तो जड़ी बूटी खा ली हमने, कल हमारी ऑल इंडिया रैंक बना जाए, नथिंग लाइक दैट एक्चुअली। तो that was a mini exam wala funda. Maximize study hours, let's not talk about it, it goes without saying. If possible disconnect cable and internet. So again I mean I am not sure कितना possible है सभी parents के लिए, because logistically मुश्किल भी होता है, केबल चाहिए तो चाहिए या नेट चाहिए तो चाहिए, but still ये काम तो कर सकते हैं कि जो नेट है तो उसमें that should be password protected and student should not be given smartphone. अगर वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो that should be under your surveillance। यहाँ भी तेरे को ये पर्टिकुलर स्लाइड देखनी है या पर्टिकुलर शीट देखनी है, चलो ठीक है। वैसे भी आई डोंट थिंक दैट as far as our prime academic system is concerned, we don't rely on these things. आपको सब कुछ हार्ड कॉपी मिल ही आता है, बट स्टिल अभी नेक्स्ट मंथ से हम लोग क्या करने वाले हैं, we will start uploading these test analysis on YouTube। कोई भी एग्जाम होगा तो उसकी जो टेस्ट एनालिसिस का वीडियो होगा, we will start uploading those videos on YouTube, and I will try to upload couple of other lectures also। तो आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो ठीक है, बट अगेन एज ए सेड पेरेंट्स, अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं मेरे ख्याल से इस तरह के, जिसमें आप खुद ही there are applications where you can restrict this surfing कि क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा वो आप डिसाइड करोगे, तो that we can do। Next is
केबल, प्री-डिफाइंड टाइम फॉर टेलीफोनिक एकेडमिक डिस्कशन। अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रूटफुल आल्सो विद मेनी स्टूडेंट्स। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे होते हैं एक ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, और जैसे डेक्कन ब्रिक बैच था लास्ट ईयर, वो पूरा का पूरा ग्रुप आईआईटी चले गया। तो उसमें बेनिफिट ये है कि जैसे मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो आई विल हैव अ टेंडेंसी टू लीव दैट प्रॉब्लम, मैं शायद क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। बट इफ समवन इज आस्किंग दैट क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं हमारी ईगो पे आता है वो चीज, क्योंकि एकदम ये वेल डिफाइंड तो होता है। ये कोई वेल डिफाइंड चीज नहीं है ना कि आता है कि नहीं आता है, आता है या नहीं आता है, ऐसा नहीं है। सो मच इज इन ग्रे, बहुत कुछ बीच में होता है कि आप थोड़ा एफर्ट्स लगाओ तो शायद आ जाएगा, टाइम लगाओ तो आ जाएगा, 2 रेफरेंस बुक देख लो तो आ जाएगा, ये फॉर्मुला देख लो तो आ जाएगा, राइट। बट वी डोंट डू ऑल दीस थिंग्स बिकॉज यू नो इंसेंटिव नहीं है हमारे पास। बट एट द सेम टाइम कोई दूसरा पूछ लेगा ना आपसे, तो आप मतलब कि पूरी कोशिश करोगे कि अरे यार उसने पूछा है मुझसे, तो कहीं ना कहीं मेरे को प्रूव करना है अपने आप को, तो यू स्टार्ट डूइंग राइट थिंग्स ना। आप थोड़ी आप कोई किसी का चोरी करके लेकर आ गए वहां से, आप उसमें जो भी करोगे वो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही करेगी। यू विल गो एन एक्स्ट्रा यार्ड देयर एंड डू सम मोर स्टडीज। So that way the group studies are important actually। कि कोई जैसे 50 क्वेश्चन का सेट है और 4 बच्चे हैं कर रहे हैं, मेरे 5 डाउट है, आपके 5 डाउट है, उसके 5 डाउट है, तो वो 5 डाउट अपने हमसे पूछेगा, उसमें शायद मेरे को कुछ आता होगा तो मैं समझा दूंगा। तो व्हेन आई एम ट्राइंग टू मेक देम एक्सप्लेन, तो उससे भी मेरा फायदा होता है। जब कोई कंसेप्ट आता हो और उसको आप एक्सप्लेन करते हो, उससे भी बहुत फायदा होता है। इनफैक्ट अप टू वेरी हाई एक्सटेंट आई गिव मच ऑफ सिग्निफिकेंट क्रेडिट ऑफ माई स्टडीज टू दीज थिंग्स ओनली। जब मैं स्कूल में था तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू आस्क मी मेनी डाउट्स, तो उनको एकदम बकायदा वो जो गेम्स का पीरियड होता था या एसयूपीडब्ल्यू का पीरियड होता था, इंटरवल होता था, उस टाइम पर वो उनके साथ बैठ के मैं उनको समझाता था क्वेश्चंस को, बहुत सारे बैठ के। तो वो करने में होता ये था कि किसी क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये लेवल चाहिए, ये आपका लेवल यहाँ पर है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये लेवल चाहिए होता है। तो वो कहीं ना कहीं यू ट्राई टू पुश योर लिमिट्स, उससे आपका बेनिफिट होता है एक्चुअली। तो बट दिस ग्रुप need to be very particular actually। आपको पता, it has to be very precise and should be scripted, कि आप पहले सोच रहे हो कि यही बच्चे इस ग्रुप में हैं, ये बच्चे ग्रुप में नहीं है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी आ गया उस ग्रुप के अंदर और वो भी पढ़ाई करनी बंद कर दी उसने। तो दैट वे मे बी पेरेंट्स कैन डिसाइड who all other friends, so that things become little more efficient for these students। तो ग्रुप स्टडी से काम कर जाती है। प्लस क्या होता है, मैंने शायद आपको लास्ट टाइम बताया था, एक स्टूडेंट है उर्वशी, शी इज इन आईआईटी मद्रास, तो और एक स्टूडेंट है अमन शर्मा, ही इज इन आईआईटी बॉम्बे। अमन शर्मा ने बोला कि सर हम लोग जब पढ़ाई करते थे, जैसे 3 घंटे की पढ़ाई की हमने डेक्कन ऑफिस में, फिर पढ़ाई के बाद में जो हमारा ब्रेक होता था ना 15 मिनट का 20 मिनट का, उसमें उर्वशी ने ये 2 क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, मजाक मजाक में थे। अच्छा बता इसका कलर क्या होता है, इस रिएक्शन के बाद कलर क्या होगा, यू नो उनकी ब्रेक में भी ऐसी बातें चलती थी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए वहां पर, एंड वो बोलता है कि अप टू वेरी एक्सटेंट क्रेडिट गोज टू दोस 2 क्वेश्चन। अगर 2 क्वेश्चन नहीं होते तो मैं आईआईटी बॉम्बे का आईआईटी मद्रास हुआ था मेरा। तो दैट वे आल्सो इट हेल्प्स। तो दे हैव डेवलप्ड अ कल्चर व्हिच इज हेल्पिंग देम टू गेट इनसाइड अ गुड आईआईटी। या बट इसमें ये प्रीटी टाइम, हाँ ये जरूरी है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, आप एकदम पढ़ाई के एकदम फ्लो में हो, एकदम टॉप पॉइंट पे हो, उसी टाइम कॉल आ जाए किसी का, तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इंस्टेड यू डिसाइड द टाइम, पहले से डिसाइड कर लो भाई 4 से 4:15 या 4 से 4:30 हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड यू शुड अलाउ योर किड्स टू टॉक अबाउट दोस क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स और डिस्कशन व्हाटएवर। मतलब ये रैंडम नहीं होना चाहिए कि 2 बच्चे ए एंड बी दोनों को पढ़ना है 3-3 घंटे, ए का जो एकदम पीक पॉइंट आने वाला था तो बी ने फोन कर दिया, जब बी का पीक पॉइंट आने वाला था ए ने फोन कर दिया, दोनों के पीक खराब हो गए। तो दैट्स व्हाट हैपेंस। तो पहले से डिसाइड कर लो, तो आपको पता है कि इस टाइम पर हमें बात करनी है इस बारे में, तो यू विल बी इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड बिफोर हैंड। नो योर स्ट्रेंथ में बात कर चुका हूं, आपकी स्ट्रेंथ जो है पहले बात कर चुका हूं कि आप अप्रैल 7 अप्रैल 2017 को पेपर डिस्कस करेंगे, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि क्या स्ट्रेंथ है। वन मोर थिंग, फॉर एनी रीजन इफ थिंग्स हैव नॉट फॉलन एट राइट प्लेस, आपको लगा है कि कुछ भी हो किसी भी तरह से, या आप पहले इतने मोटिवेटेड नहीं थे या कुछ भी था, या बहुत लेट ज्वाइन किया, या जो भी रीजन है, चीजें लाइन पे नहीं है, तो हम लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं, यू assume as if you are a 1 year student। आप ऐसे अपने आप को ट्रीट करो कि आप एक 1 year के स्टूडेंट हो। 1 year के स्टूडेंट हमको अभी अप्रैल मई में ज्वाइन करना चालू करते हैं अभी, तो आप एक 1 year के स्टूडेंट हो, और 1 year के बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी निकालते हैं, बहुत सारे। मतलब 1 year में अगेंस्ट दी लास्ट ईयर, मैं उन बैचेस का एग्जाम्पल ले रहा हूं जो बैचेस के बच्चे यहाँ बैठे हैं। आई गेस विमाननगर कुछ बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, राइट। एक लड़का था लास्ट ईयर, इसके फादर भी ग्रेफ में सीईओ थे शायद लास्ट ईयर, मिस्टर विक्रांत चंद्रकांत नाम था, विक्रांत
चंद्र चंद्राना या विक्रांत चंद्राना, विक्रांत चंद्राना। तो विक्रांत चंद्रा ने हमें ज्वाइन किया था जून में ज्वाइन किया था शायद, जून में सिलेबस खत्म हो गया लगभग, जून जुलाई गए सितंबर, 4 महीने रह गए, क्लास 12th में बच्चा, एंड ही जॉइंड अस इन जून। एंड बिलीव मी, आई मीन दैट गाय वाज कंप्लीटली आउट ऑफ वर्ल्ड। मतलब वो उसको क्लास में एक अक्षर समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूरा सुनेगा और पूरा रिपीट करने की कोशिश करेगा अच्छी तरह से। और साइकिल से ऑल द वे यूज्ड टू गो बैक फ्रॉम विमाननगर सेंटर टू हिज हाउस, पता नहीं बहुत दूर रहता था कहीं। तो कभी इसके पेरेंट्स ने क्रिप नहीं मारा इस चीज को लेकर कि इतना दूर जाना पड़ता है साइकिल से, 10 बज जाते हैं, ये बज जाते हैं, आपको लगता है बहुत टाइम हो रहा है तो ठीक है, यू मेक योर अरेंजमेंट इन दैट केस। और ही स्टार्टेड पुटिंग हार्ड वर्क। आई विल बी कन्फेसिंग वन थिंग हियर, मैं एक चीज मैं बहुत फ्रैंकली बताता हूँ उस पेपर। लगभग ज्वाइन करने के 2 या 1 महीने बाद की बात है। वेरी फ्रैंकली आई कुड नॉट हैव दिस आइडिया कि वो इतनी मेहनत कर रहा है वो और इतना आगे पहुंच चुका है। मुझे ऐसा लगता था कि इन्हें बेकार की बातें करता रहता है। मतलब आई स्टार्टेड जनरेटिंग ए टेंडेंसी वेयर आई वाज इग्नोरिंग हिम। यार ये बेसिक तो किया नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करता है, अभी ये करेंगे वो करेंगे। और ज्वाइन 2 महीने पहले किया है, तो फिर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। 2 महीने पहले आप ज्वाइन करो तो इतना मोटिवेशन होता नहीं बच्चों में कि वो इतना पढ़ जाए आगे। देन आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड सीइंग हिज रिजल्ट्स, और फिर जब मैंने इंटरेक्शन किया उससे पता लगा कि यार वो बहुत एफर्ट्स लगा रहा है। तो उसने क्या किया था, हमने उसे कुछ टॉपिक्स बताए थे, यही टॉपिक आप पढ़ लो अच्छी तरह से, तो वो टॉपिक्स पढ़े हुए टॉपिक्स अच्छी तरह करने स्टार्ट कर दिए थे। और एनीवे तो बहुत हार्ड वर्किंग था, स्मार्ट भी था काफी वो। एंड फाइनली ही मेड इट टू आईआईटी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आईआईटी गुवाहाटी में। और जब वो ज्वाइन किया था, उसके ज्वाइन करने से अगले 3 महीने तक लगभग पूरी की पूरी क्लास उसके आगे दिखाई देगी आपको। जैसे मान लो जून में ज्वाइन किया है, तो जून जुलाई अगस्त तक 3 महीने तक आपको रिजल्ट आप देखोगे तो ही वॉज अमॉन्ग लास्ट स्टूडेंट्स। ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था उसका। मोस्ट ऑफ द क्लास, अदर 90% ऑफ द क्लास वॉज अहेड ऑफ हिम, बट वहां से पीछे से आके इसने वापस से क्रैक कर दिया। राइट नाउ इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज इन आईआईटी गुवाहाटी। तो why am I saying this? Because if at all things have not fallen at right place for you, अगर आपको लगता है for any reason चीजें ठीक नहीं गई हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे अज्यूम करो कि आपने एक साल के लिए कोर्स के लिए ज्वाइन किया है और अभी आपका फेब मार्च से आपको कोर्स स्टार्ट हो गया है, और जो आपको अभी तक आता है वो एक एडवांटेज है। दैट इज एडवांटेज, राइट? कुछ तो सीखा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं सीखा होगा। आई एम श्योर बहुत कुछ सीखा होगा। तो देन ऑल्सो देयर आर चांसेस दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड रिजल्ट एक्चुअली। देन सॉल्व एंड गो थ्रू सॉल्यूशन ऑल्टरनेट प्रॉब्लम्स। अगर आपको लगता है कि आपको 20 क्वेश्चंस करने को दी गई है, इन टाइम 10 क्वेश्चंस का ही आपके पास। मैंने आज पढ़ा दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन, कल मेरे को अगले टॉपिक पे जाना है और आपके पास वही 24 घंटे हैं, उन्हीं को आपको डिवाइड करना है और आपने अपने रिसोर्सेज, अपनी कैपेबिलिटीज और अपने ओवरऑल टाइम फ्रेम के हिसाब से डिसाइड किया कि सर ने 20 क्वेश्चन दिए करने को, लेकिन 10 ही कर पाऊंगा। एक काम करो कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, दूसरे का सोल्यूशन देख लो, तीसरा सॉल्व कर दो, चौथे का सोल्यूशन देख लो। That way you will be having exposure to more number of problems instead of simply just solving few and leaving all others. Make short notes for fast track revision. There is a high time I should talk about it. सिर्फ मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। I was in class 10th. I was in Air Force Station गुवाहाटी। तो जिस टेबल पे पढ़ता था मैं, उस टेबल के बाजू में से लाइट आती थी वहां से। लाइट के लिए फिर क्या पेपर लगा रखा था वहां पर एक। उस पेपर में जो न्यूज थी, मेरे को अभी तक याद है, उसमें लिखा था टी टेस्टर इंडिया, टी टेस्टर डॉली रॉय। ये तो कंपनी होगी आसाम में, तो उसकी एक टी टेस्टर थी जो टेस्ट करती थी, डॉली रॉय था। कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है, देयर इज नथिंग रिलेवेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज, एकदम फालतू सी न्यूज है। बट जस्ट बिकॉज इट वॉज देयर ऑन दैट वॉल, तो आते जाते मेरे को दिखता था और मैं उसको पढ़ लेता था। वो दिमाग में अभी तक बैठ गया, मतलब अभी तक बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट 20 years now, but still I remember कुछ उसमें ऐसा लिखा था, टी टेस्टर डॉली रॉय। एग्जैक्टली सेम थिंग गोज टू स्टडीज आल्सो नो। अब जब घर पे जब पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी आप 1-1.5 साल के लिए अगर अपना इंटीरियर डिजाइनिंग को थोड़ा बैक सीट पे रखोगे तो भी चलेगा। देयर इज नो हार्म इन पेस्टिंग दोज चार्ट्स एंड फॉर्मुलेस ऑन दोज वॉल्स। उसमें क्या आते जाते चलते चलते देखते ना स्टूडेंट, तो बहुत फायदा होता है उसका। मतलब आपने भी चीज नोट की होगी शायद, आई नीड नॉट पिन पॉइंट एनीवन, आप खुद ही इस चीज को याद कीजिए कि कहीं पर कोई पेपर लगा हुआ है अपने घर में, राइट, उसके अंदर क्या लिखा है वो पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि कई बार उसको देखते रहते हैं, कई बार बैठे हैं तो ध्यान जाता ही है उसके ऊपर बहुत बार इस तरह से। तो यहां पर भी ऐसा ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मुलेज जनरली
कई बार याद नहीं रहते लोगों को। इनऑर्गेनिक में रिलेटिवली ज्यादा नॉलेज बेस्ड चीजें रहती हैं। मैथ्स एंड फिजिक्स आर क्वाइट लॉजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड इनफैक्ट अंदर भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लोगे, फिजिक्स का टॉपिक लोगे या मैथ्स का लोगे, तो उसमें बहुत कुछ लॉजिकल होता है, बहुत कुछ मैथमेटिकल होता है, बट केमिस्ट्री में रिलेटिवली कम होता है। उसमें थोड़ा याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिवली। मैं ये नहीं बोल रहा कि केमिस्ट्री में सिर्फ आप बिना समझे पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, बट रिलेटिवली केमिस्ट्री में नॉलेज ज्यादा होती है। तो हम ये सर्च करते हैं कि आप जैसे कुछ फॉर्मुलेज हैं इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के, इसको वैसे दीवार पे चार्ट वाट लगा के रखो, उसको आते आते आप देख सकते हो, तो वो चीज दिमाग में बैठ जाती है। आपको 1.5 साल के यू हैव टू रिटेन दोज थिंग्स 1.5 years। मेरे को तो 20 साल तक याद है, वो डॉली रॉय टी रजिस्टर नाम लिखा था उसके ऊपर। तो ऐसे ही आई एम श्योर स्टूडेंट्स के साथ भी होगा, आपके साथ भी होता होगा ऐसा। तो कल्टिवेट दिस हैबिट ऑफ पेस्टिंग सच थिंग्स ऑन वॉल्स ऑफ योर हाउस, देयर इज नो हार्म इन दैट एक्चुअली। बाद में आप एक साथ निकाल सकते हैं इसको। शॉर्ट नोट्स की मैंने बात की थी, जैसे कुछ फॉर्मुलेज होते हैं याद नहीं रहते हैं, उनको आप एक बहुत हैंडी सी छोटी सी नोटबुक में लिख सकते हैं, जो अपनी जेब में रख सकते हो कई बार आप वॉट एवर। तो जैसे कई बार आप जा रहे हो बस स्टैंड में वेट कर रहे हो, तो एक बार निकाल के देख लिया। आई डिड दैट एक्चुअली। छोटी सी बुकलेट थी और उसमें मैं फॉर्मुले लिखता था, मैं जो मुझे जल्दी याद नहीं रहते हैं। तो हम खेलने भी गए हैं जैसे, और कोई बीच में टाइम गैप है, मान लो मैं गया और आउट हो गया और 1 घंटा आधा घंटा वेट करना है, तो मैं आधे घंटे में इसको देख लेता था। कई बार बस स्टैंड पे है, मैं इसको देख लेता था। इट हेल्प्स। इफ लेट नाइट स्टडीज आर प्रेफर्ड, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम रात में अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। अगेन आई वाज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिनको रात में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती थी। तो अगर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सुबह नींद आती है, डिस्ट्रैक्शन होता है, वॉट एवर, देयर इज नो हार्म इन लेटिंग देम स्टडी लेट नाइट। कई लोग 12, 1, 2, 2:30 जो भी है, कितनी भी लेट तक पढ़ सकते हैं। और किसी को मॉर्निंग में इंटरेस्ट है तो मॉर्निंग में पढ़ने दीजिए। तो लेट्स नॉट अननेसेसरली इम्पोज एनी प्रेशर फॉर देम, भाई आप सुबह ही पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो, ऐसा जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई द बेस्ट प्लेस, जब शोर थोड़ा कम हो, वहां पर दी स्टूडेंट्स शुड स्टडी। देखो वहां पर ही मुझे याद है लास्ट टाइम ही मैंने स्मार्टफोन को एकदम हाईलाइट करके रखा था। डोंट्स में लगा स्लाइड फ्रॉम फर्स्ट पीटीएम, स्मार्टफोन बिग नो। आउटिंग विद फ्रेंड्स, आउटिंग विद फ्रेंड्स से अच्छा है कि आपके साथ आउटिंग हो जाएगी, ज़्यादा बेटर रहेगा। दे विल गो आउट एंड यू विल आस्क देम कि कैसा चल रहा है क्लास में, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल प्रॉब्ली बी एबल टू हेल्प देम विद योर एक्सपीरियंस। यू कैन सीक्वेंट एज रिसर्च इन एनी स्पेसिफिक टॉपिक। कोई टॉपिक अगर बहुत, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कुछ पढ़ाया तो एकदम उसमें रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा क्यों है, यूट्यूब देखना चालू कर देंगे, बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज नो यूज एक्चुअली। यू हैव टू गो विद सम स्मार्ट स्टडीज हियर। हमारे जो एजेंडा है वो काफी हद तक या इनफैक्ट 101% सफाइस होता है अगर हमारी क्लास अटेंड करके भी उसका रिविजन ढंग से किया और टेस्ट लिए। तो उसके लिए आपको ना ये बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स या फिर यूट्यूब या फिर बड़ी इंसाइक्लोपीडिया खोलने की जरूरत नहीं है। दैट विल अकाउंट फॉर वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स ना खेलते हुए छोटा माइल्ड वॉक पे या कोई हल्का लाइट स्पोर्ट खेलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मीटिंग विद पेसिमिस्ट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव गॉट दिस थिंग इन माइंड, यार हमारा कुछ हो नहीं सकता, हमारा कुछ हो नहीं सकता। अब ऐसे लोगों से मिलोगे तो आपको भी लगेगा आपका भी कुछ नहीं हो सकता, तो बेटर यू स्टे अवे फ्रॉम देम। मैं ये सब बात कर चुका हूं, सो आई एम जस्ट रशिंग फास्ट। प्रेस पैनिक बटन बिकॉज ऑफ 11th एग्जाम स्कोर। अब 11th के एग्जाम में क्या था, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन सीक्वेंस you suffer up to some extent. I suffered, all my students suffer in class 11 up to some extent, but that does not happen in class 12. तो होता है कि जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ SHM, स्कूल में पूछना ग्रेविटेशन, तो ठीक है 2, 4, 5 नंबर कम आगे चलता है और क्या, लेकिन जो एक्चुअल यार्ड स्टिक है जिससे आप पता कर सकते हैं लोग ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो ये है कि पर प्राइम एकेडमी की क्लासेस में उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दैट्स इट। इफ दैट इज द केस, बिलीव मी, यू नीड नॉट चेंज द कंप्लीट situation or rather I should say your working rules or protocols for your students. Frequent statement meeting with parents. I told about this thing also. Don't expect 100% in these JEE exams. It is not possible. Parents के लिए भी slide थी, 100% attendance होनी चाहिए, ये parents की responsibility है. During tough time, don't let your ward give up. अगर यही बात कर चुके हैं हम लोग, इतना आपके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, इतना स्टूडेंट फ्री होने चाहिए आपसे बात करने के लिए कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो आपसे बात कर पाए, पूछ पाए कि ये प्रॉब्लम है, so that you can suggest them the suggestion. You can help them with the suggestion. It's always better to have some idea about the syllabus. जैसे बताया मैंने आपको कि फिजिक्स का जो सबसे टफ, नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सबसे टफ टॉपिक है वो हमारा खत्म हो चुका है।
राइट. अभी इसके आगे इजी टॉपिक्स हैं, तो यू कैन ऑलवेज मोटिवेट देम कि अभी यहाँ तक तेरे को परेशानी नहीं तो आगे परेशानी नहीं होगी. ट्राई टू सेव एवरी सिंगल मिनट. ठीक है, बात कर चुके हैं. डिस्कस बट डोंट बी ओवर. ओके, मोटिवेट देम टू. ठीक है, मोरलेस आई टॉक्ड अबाउट ऑल दिस. हाँ, वन थिंग, इफ पॉसिबल टेक योर किड फॉर अ कैजुअल आईआईटी विजिट. कई बार देखा है कि वो आईआईटी के अंदर जाके वो जब देखते हैं ना, वो जो उसका कैंपस है, द मोमेंट दे गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे, वहीं पर एकदम स्पार्क लगता है उनको, एकदम बस वहीं पर ही आग लग जाती है कि बस यहीं पर आना है हमें. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव डन दिस एक्चुअली. उससे एक बार आईआईटी में गए, उन्होंने उनका फ्लैट, वो उनका व्हाट डू यू कॉल दैट, जिम या फिर डिपार्टमेंट या फिर सैक स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर देख लिया. वो इतने ज्यादा मोटिवेट हो गए दैट दे मेड श्योर दैट वी हैव टू बी देयर. इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी शोन द वीडियोस आल्सो एंड आई विल बी डूइंग इट अगेन ऑन अप्रैल 2017, जहां पर वो आईआईटी के अंदर लाइव क्या है वो सब ये बात करते हैं इस बारे में. So that is also very motivating to many students, for many students. About guests, जब पढ़ाई चल रही होती है उस टाइम पर गेस्ट घर पे ना आए तो अच्छा है. फिर क्लोज ऑल कम्युनिकेशन, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस आल्सो. केबल अवॉइड कीजिए. इनफैक्ट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु क्लियर आईआईटी, उनके घर में केबल नहीं होता. दैट्स व्हाट आई हैव सीन. आई मीन क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, नेम इज कर्नल भवेजा. Her daughter was with us for 3 years. Now he just got posted in Jaipur. तो अभी कुछ दिन पहले वहीं पर था मैं, तो आई सॉ नहीं है, मतलब घर में केबल ही नहीं है एक्चुअली. दे डोंट हैव केबल. अभी इट्स नॉट लाइक दे कांट अफोर्ड इट, ऑब्वियसली दे कैन अफोर्ड इट वेरी इजीली. उनका बड़ा बेटा ध्रुव भवेजा इज इन आईआईटी. कोई प्राइम एकेडमी पिंपरी में थे दोनों बच्चे. देन अप्रिशिएट बेटर कंसेप्ट रादर देन गुड स्कोर. ठीक है, स्कोरिंग इज not the only criteria to judge whether student is good or not. Talking about the results, and we have already talked about this, but still I am repeating once again, because कहीं ना कहीं आपके बच्चे ही नेक्स्ट ईयर यहाँ पर होंगे या नहीं होंगे, right? So that also kind of gives some motivation to students. Last year, many of these students could make it to IIT with a rank of only rank 108. This guy Mayank, then Ankit 110, Ankur Singh 636. It was a very casual slide. उस स्लाइड हमने चेंज की नहीं, वो सेम लगाए थे हर बार हम लोग. तो बहुत पुरानी स्लाइड है. 118 बच्चे थे. 118 बच्चों ने जेईई एडवांस क्लियर किया था. एंड उसमें एक संप्रीत जाम्बुलकर, दिस गाय गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन रिजर्व कैटेगरी. So I'm sure like these students and you as a parent will be happy if one of the pick is of your son or daughter. Means का रिजल्ट था लास्ट ईयर का. आई गेस यू नो अबाउट दिस. प्राइम वाज अप्रिशिएटेड बाय एचआरडी आल्सो. स्मृति ईरानी ने वहां पर दिल्ली में बोला था, आईआईटी दिल्ली में, कि देयर इज अ ग्रुप इन पुणे, यहाँ लिखा हुआ एग्जैक्टली. शी एडेड दैट नवोदय विद्यालय हैव कोलैबोरेटेड विद अ फाउंडेशन टू कोच स्टूडेंट्स फॉर जेईई. तो पूना के लिए प्राइम एकेडमी की बात चल रही थी. Bangalore and Pune have scored a success rate of 100%. So Pune Prime Academy, sorry, Pune Navodaya Vidyalaya means Prime Academy tha wo. So it doesn't usually happen that the government of India, that time she was HRD minister, किसी कोचिंग क्लास को प्रेस कर जाए, वो कभी होता नहीं है. So still they said good about us because result was very good that year, last year rather. In fact, last year the person who got rank 1 in reserve category, Sampreet Jambulkar, he was from Prime Academy. And coincidentally, last year also, the person who got all India in reserve category, he was also from Prime Academy. His name was Chinmay Sahu. Okay, fine. Now we are almost done with this session. Last few minutes I'll talk about exam pattern. मैंने इसको एकदम बैक सीट पे इसलिए रखा था क्योंकि ये पैटर्न हर बार चेंज होता है, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं इसके बारे में बात करने का. जैसे अभी पैटर्न ये है कि आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना है अप्रैल 2018 में. 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे ये वाला जेईई मेंस का. अब उन 15 लाख बच्चों में से 2 लाख बच्चे सेलेक्ट करेंगे फॉर जेईई एडवांस. लेट मी रिपीट, 15 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेंस का एग्जाम देंगे. उन 15 लाख स्टूडेंट में से दे विल सेलेक्ट 2 लाख स्टूडेंट्स फॉर जेईई एडवांस्ड. एक क्राइटेरिया है, लेट्स कॉल इट बोर्ड क्राइटेरिया. समझाने के लिए नाम देता हूं बोर्ड क्राइटेरिया. देयर आर से 2 क्राइटेरिया हियर.
जेई मेंस दिया, कितने बच्चों ने? 15 लाख बच्चों ने। इसमें से 2 लाख स्टूडेंट चूज किए। तो जो 2 लाख स्टूडेंट चूज किए वो जेई मेंस में उनका रिजल्ट टॉप 2 लाख में होना चाहिए, राइट? दैट इज मेंस क्राइटेरिया, means criterion here, and second criterion is board criteria, board वाला। बोर्ड क्या होता है? बोर्ड क्राइटेरिया इज नो यू शुड गेट 75% प्लस इन अ बोर्ड एग्जाम। अगर आपका स्कोर 75.2% है बोर्ड में, तो मतलब आपने बोर्ड का क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लिया। 75.2 को आप 100% भी खींच दोगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल बी ट्रीटेड एज द सेम पर्सन। आपका 75.2 हो या 100 हो, एक ही बात मानी जाती है, राइट? व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज आई मीन अननेसेसरली डोंट कीप दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन बैक सीट टू स्ट्रेच इट फ्रॉम 75 to 100। सेफ होगा अगर आप 80 के आसपास लाते हैं आपके बोर्ड में, तो दैट सेफ, बिकॉज कम होके भी 75 तो आ ही जाते हैं इन दैट केस। आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम, 11th की तो कोई पूछता भी नहीं, राइट? तो in fact, last time I gave an analogy for this. I said it's like a World Cup match. World Cup matches में क्या होता है कि फाइनल में पहुंचने के लिए आपको लीग मैचेस क्वालिफाई करने पड़ते हैं, आपको एक बेयर मिनिमम पॉइंट सिस्टम क्रॉस करना पड़ता है। आपके मान लो 4 पॉइंट्स हैं, तो आप अगले मैच में चले गए, फिर फाइनल में चले गए। और एक बार आप फाइनल में चले गए तो ये मैच नहीं करता कि आप कितने पॉइंट लेकर फाइनल में आए हैं, उस दिन सिर्फ फाइनल मैच देखा जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा ही है। तो बोर्ड में आपके 75% मार्क्स आ गए तो बस खत्म हो गया, कुछ जरूरत ही नहीं है, उसके आगे बात ही नहीं कर रही हूं। हाँ, देयर आर फ्यू बोर्ड्स जहां पे 75% से कम आने पे भी काम हो जाएगा आपका, उसको बोलते हैं परसेंटाइज सिस्टम। तो आई होप इट इज क्लियर। 75% मार्क्स है मतलब आगे कुछ बात ही नहीं कर रही है, तो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट इट। 75% मार्क्स आ गए, सिर्फ आपका जेई में देखेंगे उसके आगे। अगर 75% नहीं आए हैं तो क्या? देन ऑल्सो देयर इज वन स्कोप, we call it percentile system. If you are among top 20 percentile of your board exam, of a board, respective board, अगर आप अपने respective board के top 20 percentile में हो, then also you qualified. तो होता है कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहां पर आपका 72% मार्क्स होगा ना, then also you are among top 20 percentile. So even you could not cross 75, but still you made it. लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड की बात की जाए तो इट्स आई गेस अराउंड 75-76% ओनली। नागालैंड बोर्ड में जिसका स्कोर 47% होता है, दैट इज इक्वल टू आंध्र बोर्ड का 88%, टॉप 20 परसेंटाइल। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस वियर्ड एंड आई शुड से स्पेशल केसेस। काम की बात करते हैं, 75% नंबर आपके आने चाहिए, बस खत्म बात, दैट्स इट। वो आ जाएंगे, दैट आई नो। अगर 2 साल क्लास अटेंड करते हैं तो 75% मार्क्स मतलब आई डोंट सी एनी स्टूडेंट गेटिंग बिलो दैट, इतना कम नहीं होता। एनीवेज, तो आपका 75% आ गया, 2 लाख बच्चों को सेलेक्ट किया, एंड दीज गाइस विल गिव एन एग्जाम कॉल्ड जेई एडवांस। और जेई एडवांस के बेसिस पे दीज स्टूडेंट्स विल गो टू आईआईटीज। व्हेन दे आर मेकिंग अ मेरिट लिस्ट ऑफ जेई एडवांस स्टूडेंट्स, दैट टाइम दे विल नॉट लुक एट योर जेई मेन स्कोर, दे विल नॉट लुक एट बोर्ड स्कोर, कुछ नहीं, सिर्फ आपका जेई एडवांस का स्कोर। बट एवरीबडी इज नॉट एबल टू मेक इट टू आईआईटी, हर बच्चा आईआईटी नहीं जा पाता। If you are not able to make it to IIT, then they will make one more merit list only on the basis of your JEE main score. And as per that ranking, you will get all those good NITs. Like Pune में COP college अच्छा है, it's very good college. Not NIT, but it's a very good college. So you start getting those things. So this was the session. I hope many of these things will be helping you. And if at all you have got few doubts, I'll be more than happy to cater those doubts here. Yeah. Anil. Anil. Yeah, please. Anil, I'm sorry. ये बंद कर दो।